Somebody else, please. Sorry, I couldn't hear you well. I hope you guys are able to see the screen. Is this visible to you guys? Yes, ma'am. That's great. That's great. So let's start with a little bit of formal introduction of uh, the session that we are going to conduct today and what I am, who I am. The basic concept of this training session is that how we can reimagine teaching social studies at primary level. Specifically, we are not talking about only the primary level, like Rubina said, she's teaching grade 7s as well. The things we are going to discuss are they will be useful for all the teachers who are teaching social studies, not even in your school, in every school. But specifically, when we are talking about your school system who promotes all those facilities and all those experiences, which is the part of 21st century. So, keeping the agenda of your school in mind, we are going to discuss that how we are going to teach social studies and how we are going to enhance the engagement. Um, Here I am. My name is Hina Rashid, and I'm currently working as a lecturer in the Department of Educational Sciences in National University of Foreign Languages, Islamabad. I'm as well a doctoral candidate, and I'm going to study curriculum and instruction. So the training session, it also relates with my um, studies as well, that how we can enhance the curriculum and how we can improve the instructional approaches of the teachers. Um, Let me ask you a question. I want you guys to think and reflect back at your experiences of learning social studies. आप में से कौन बताना चाहेगा कि what were your experiences when you were studying social studies when you were a kid? Because we cannot understand it what we have gone through and what we are looking for until and unless you reflect on your own experiences. So who is going to tell me please? Because ये बहुत जरूरी है आप सबके लिए इसको सोचना and पंजाब में लाहौर बोर्ड रावलपिंडी बोर्ड चटोटा बोर्ड Khadija, you want to answer my question or your mic is open? Can you please mute yourself if you are not answering? किस किसकी है Okay, anybody else, please? टाइम वेस्ट करने की बात जी मैं रुबीना बात करना चाहूंगी जी बात कीजिए प्लीज. हाँ जी जैसे आपने पूछा कि सोशल स्टडी पढ़ाने के लिए या हिस्ट्री ज्योग्राफी के जो मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि मुझे जो है कि हिस्ट्री बहुत पसंद है मुझे डेट्स याद करने तो इतनी नहीं रहती लेकिन मुझे होता है कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उससे पहले मुझे पता हो कि इससे कैसे स्टार्ट हुआ इसकी हिस्ट्री तो मैं बच्चों को पढ़ाते हुए मुझे खुद को भी मजा आ रहा होता है कि हम जो है वो पढ़ रहे हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो मुझे खुद भी पता हो कि सारा कैसे है तो मुझे एक मेरा एक्सपीरियंस जो है वैसे मैं एक मैथ्स टीचर भी हूँ तो मेरा जो फोटे है वो मैथ्स है लेकिन मैं सोशल स्टडी और हिस्ट्री ज्योग्राफी भी करवा रही हूँ तो ये एक मेरे लिए एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और फिर इसको अपना बच्चों तक पहुंचाना उस चीज को ठीक है. Other than remembering the days, Khadija campus, I want you to please mute your mic.
the representative of Khadija campus, can you please, because I cannot unmute myself, unmute you. Acha, Rubina, you were sharing that you Yes. loved to remember the dates and remember the sequences. So, was it always very helpful for you to remember the sequences and dates? समटाइम्स इट्स मेक्स डिफिकल्ट कि नहीं उस तरह से याद रहता, लेकिन फिर ये होता है कि अगर आप पॉइंट्स बच्चों को, मैं जो है ना कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी जो चूंकि पढ़ा रही हूँ, तो मैं बच्चों को ज्यादा इम्फेसाइज करती हूँ कि आप पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स और डेट्स को और उनमें क्या हुआ उसका छोटा छोटा जो है ना उसको हाईलाइट करवा देती हूँ कि आप इस चीज को जहन में रखो, क्योंकि बच्चे हैं, हम भी जब इस एज में थे तो हमारे लिए ये चीजें याद करनी क्वाइट डिफिकल्ट होता था। तो बिल्कुल, इसको मेरा कैसे सवाल ये था आपसे कि जब आप हाँ छोटी जी, थी तो आपके लिए ये वाज इट इजी, वाज इट बोरिंग, वाज इट डिफिकल्ट, व्हाट सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट इट वाज? डिफिकल्ट डिफिकल्ट हाँ, वो तो हमारे जमाने में था, फिर हम तो फिर वो आपको पता है ना रट्टा ही लगाना है। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई तो वाज टॉकिंग मैं ये अबाउट। चाहती हूँ कि जो हिस्ट्री जो भी हम्म मैं भी हम्म कि आपसे सीखना कि वो हम्म कैसे हम जो है ना बच्चों के जहन में वो चीज डाल दें कि वो हम्म बच्चों के लिए कि इंटरेस्ट हो। हिस्ट्री ज्योग्राफी इज अ वेरी, इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ ड्राई सब्जेक्ट कि काइंड ऑफ उसमें बच्चे सब्जेक्ट खुश फॉर हो देम। जाएं कि उसमें इंटरेस्ट उनका हो जाए, वो कहते हैं पता नहीं क्या ये, व्हाट इज दिस मेसोपोटामिया, ये एंशियंट हाँ। इजिप्ट, ये क्या हम्म चीजें बोल रहे हैं। हम्म क्योंकि हम्म बच्चे आजकल इस एज में बच्चे जो हैं वो ज्यादातर हैं कि वो हमें जल्दी से हर चीज मिल जाए, हम्म, इंफॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन उन्होंने उसके लिए करना नहीं है कि हम बनी बनाई मिल जाए। हाँ, तो because there's बच्चों a का change. मैं Exactly, you were right. There is a shift in information. हमारे लिए information gain करना, there were another way. हम चीज़ों को बहुत पढ़ के हमारे लिए चीज़ों को, information को gather करना भी, there was a task for us when we हाँ were young and we were kids. यू Now when at this generation, whenever you whatever you want to search, you just tap your fingers and here is the information. है ना, बिल्कुल हियर ऐसा इज ही. द So, इंफॉर्मेशन। the बिल्कुल most important thing you shared is that what I was looking for, that at our time, social studies, history, and geography was more about just rote memorization. What we यस are going to यस look ओनली into मेमोरी। it, जब हम देखेंगे तो जो हमारा ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस था वो सारी की सारी रोट मेमोराइजेशन पे बेस करती थी, और अभी भी कुछ जगह पर ऐसा है people are leading all these subjects with rote memorization. And inshallah ta'ala, you'll learn so many new tools that how you can make your classroom from teacher centric to student centric, तो खुद से learn करें, खुद से explore करके चीजों को लिखना शुरू करें. Thank you so much, Rubina. Anybody else? I want someone else to add their opinion as well. Okay, what was their opinion when they were young and going through social studies? Rakha, a little bit down, huh? But I want you guys to participate and be active because we are going to learn something. कोई एक response मुझे और चाहिए, उसके बाद we are going to start it, inshallah ताला. Ji, who wants to be the... So we have people from all campuses around Pakistan. Someone shared that they are from Bhakkar, I guess. Bhakkar, or what place that was? Can I talk to somebody who is not from Islamabad, Lahore? I want to talk to someone who is जो थोड़ा सा ऐसे एरियाज हैं जो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड नहीं है या बहुत ज़्यादा जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं. Is there anybody? Yes, Bhakkar से जो the right school from Bhakkar. I wanted to talk to you, please.
Ji, can you hear me? Bakar campus, can you hear me? So I think you guys, am I audible to you guys? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So why aren't you, I need the responses क्योंकि देखिए कोई भी सेशन Assalamualaikum, इंटरेक्टिव ma'am. It's Talhar Salam from Hamad campus. You are not clearly audible because your mic, I think, is not properly before your mouth. Please adjust it. Can you hear me now, Talha? Ji Talha, can you hear me now? I think rest of the participants can hear me very well. Is it this? Is it like that? Can you hear me other than Talha? Ma'am, now it's good. It's clear. Okay, fine. Would you like to add something else other than that, Talha? That how was your experiences? So let's move on to the topic that how we can reimagine it. Fine. We have talked about the right school and the curriculum. They have provided you the opportunity which they have given you, teaching the social studies in a very different domain. And I encourage the curriculum because I have seen those books, and those books were very interesting. And the books were providing all those areas and opportunities which can be availed to teach students a very good social studies knowledge in a very interactive manner. So the objectives we are going to achieve by the end of this session are that you would be able to understand what are the basic principles, होते क्या हैं, that how you are going to teach social studies to the primary level students. उसके अलावा what are the modern pedagogical strategies? This is very important being in 21st century that modern pedagogy is to be opted for all of us to enhance the engagement and the knowledge of our students. Okay? There are some examples which I have written here. The stories learning, and I hope you must have heard all these names before, but sometimes we are unable to imply all those things into our teaching, rather, despite knowing them how they work. The most important thing is the integration of age appropriate digital tools. There are so many tools, digital tools available right now. They are everywhere, they are very accessible, and you can use them for free. So for using them, it is very important that you should know that you have to use age appropriate digital tools. वो tools जो कि primary section के बच्चों को या 8th and 10th graders के बच्चों को, they are going to be significant for them to use. डिजिटल लेसन आइडियाज, आप किस तरीके से अपने लेसन्स को डिजिटलाइज कर सकते हो, ये चीजें हम आज इस सेशन के अंदर देखेंगे. आपने इंट्रोडक्शन खुद भी दिया, जैसे रुबीना ने बात की अभी, कि आप ज्यादातर हम क्या करते हैं कि डेट्स पे बात करते हैं. वी रिस्ट्रिक्ट आवर सब्जेक्ट टू प्लेसेस, डेट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स. आपको क्या लगता है, व्हाट इज द रीजन कि बच्चा इन चीजों को पढ़ते हुए पार्टिसिपेट नहीं कर पाता? व्हाट डू यू थिंक, इतने अरसे में क्या मेन रीजन आपको ये लगी है कि दिस कुड बी द रीजन कि बच्चा सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट में इनएक्टिव रहता है, he thinks as a passive learner. जी बताइए, what are the possible reasons?
आप प्लीज अब्दुल रहमान अपना माइक ऑफ कर जी, थैंक यू फॉर म्यूटिंग जी। एनीबडी एल्स प्लीज? मैम आई थिंक इसकी वजह ये भी हो सकती है कि जो नंबरिंग है ना उनको याद रखना इट्स नॉट इजी, यानी कि नंबर्स को एज अ नंबर याद रखना इजी नहीं है जब तक उनको आप किसी सिंबॉलिक वे से रिप्रेजेंट ना कर रहे हो या किसी चीज के साथ रिलेट करके याद ना कर रहे हो। तो ये बहुत सारी डेट्स के नंबर से रिलेटेड है, तो वो एज किसी भी चीज को एज अ नंबर याद रखना इट्स नॉट इजी। हाँ, थैंक यू सलहा। एक और चीज ऐसी है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक इट्स पास्ट। जो चीज गुजर गई है वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, वो वहीं पे पैसिव हो जाते हैं। क्योंकि जब हम पास्ट को सिर्फ पास्ट के तौर पे पढ़ा रहे होते हैं, वी कैन नॉट रिलेटेड और वी डू नॉट रिलेटेड विद द प्रेजेंट। जब हम उसको प्रेजेंट से किसी तरीके से रिलेट नहीं कर रहे होते, तो इट्स अ पास्ट सिनेरियो फॉर देम एंड दे लॉस्ट देयर इंटरेस्ट बिकॉज दैट्स अनचेंजेबल। जो साइकोलॉजिकल एक फैक्टर है कि जब बच्चा ये समझता है कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, आई जस्ट हैव टू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड द डेट्स एंड किस वक्त क्या हुआ था एंड दैट्स इट। ठीक है ना? तो एक ये भी बहुत बड़ी रीजन है, पास्ट इवेंट्स को जब तक हम अपने प्रेजेंट के साथ रिलेट करके समहाउ इन अ स्टोरी बिल्डिंग मैनर हम उसको नहीं करवाते, बच्चे के लिए इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। एक और चीज जो कि रिसर्च आपको बता रही है वाइल द ऑब्जर्वेशन दैट जो टेक्स्ट बुक नॉलेज है, दैट्स होल लेसन इज टेक्स्ट बुक नॉलेज ड्रिवन। आज ज्यादातर सिर्फ टेक्स्ट बुक को देखते हैं, उसी को पढ़ाते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं। और बच्चे की जैसे अभी बताया तलहा ने कि उसमें हमें ज्यादातर ऐसा लगता है कि चीजें याद करने की हैं, एक्सप्लोरेशन नहीं है इतनी ज्यादा। और पास्ट इवेंट है तो हमने उसको क्या ही याद रखना है ना? तो इस वजह से हमें ये देखना है कि हम अपने कंटेंट को किस तरीके से पास्ट से प्रेजेंट के अंदर लेके आ सकते हैं। ठीक है? नाउ आई हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस। आपको क्या लगता है कि ठीक है, रोड मेमोराइजेशन भी है, डेट्स भी हैं, ये सब कुछ है, हमें जरूरत क्या है? व्हाई वी नीड दिस सब्जेक्ट? अगर हम रोड मेमोराइजेशन से उसको पढ़ के यहाँ तक पहुंचे हैं, हमें ये भी नजर आ रहा है कि बच्चों के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द डेट्स एंड द कंटेंट एंड सीक्वेंस को याद रखना, ये हमारे लिए लेकिन ये जरूरी क्यों है? यू एज अ टीचर, हाउ यू एक्सप्लेन इट that it is very important or we don't need social studies education? आपकी इसके बारे में क्या राय है? मैम एज वेल एज माय ओपिनियन इज कंसर्न, हमें पिछले तमाम जो हमारे माजी की वाकयात हैं, जो डेट्स हैं, उनको आज के दौर में मौजूदा मामलात से रिलेट करना होगा, ताकि उससे जो है ना एक इंटरेस्ट और जो है ये पता चले कि कौन सी चीज ऐसी है जो जिसका डायरेक्ट ताल्लुक हमारी आज के मामलात से है। ओवरऑल मैंने बात की। ठीक, वेरी गुड। और एक तो चीज ये हो गई कि आप ये कह रहे हो कि जो पास्ट में हो चुका है, हाउ वी आर गोइंग टू रिलेट एंड इंटीग्रेट इट इनटू आवर प्रेजेंट, इसके लिए हमें सोशल स्टडीज की एजुकेशन की जरूरत है। और एक दो चीजें ऐसी कौन सी हैं आपको लगता है कि हमें उसकी उनकी वजह से सोशल स्टडीज पढ़ाई जानी चाहिए? You can use the chat box as well if you are not a talkative person, but I request all of you to be a little bit vocal about your thoughts, please. रुबीना, आपको क्या लगता है, बताइए कि हम क्यों पढ़ाते हैं सोशल स्टडीज? आप पढ़ा रहे हो सेवेंथ को, व्हाट डू यू थिंक व्हाई वी टीच देम? मैं जो जो समझती हूँ, मुझे ये लगता है कि देखें जी, सिविक सेंस जो है, हम सोशल स्टडी में सिर्फ यही तो नहीं पढ़ाते, हिस्ट्री तो नहीं पढ़ाते हम उनको, जैसे हाउ टू लाइफ, जो लोग कैसे गुजारते थे जिंदगी और हमें कैसे गुजारनी है। हम्म, तो सिविक सेंस ये हमें ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं समझती हूँ कि हम तो ये भी सिखाते हैं बच्चों को, बिल्कुल। ज्योग्राफी भी हम सिखाते हैं उस पर। ठीक है ना, ये कि कोई चीज बच्चों को पता चले कि हम जहाँ रह रहे हैं वो मौसम जो हम फेस कर रहे हैं, जो नॉर्थ में रह रहे हैं वो कैसा मौसम फेस कर रहे हैं, जो हम वेरी यहाँ कपड़े पहन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी लिव इन पंजाब, तो पंजाब में हम क्या खाते हैं, क्या हमारा कल्चर है, हम ये सोशल स्टडी सिर्फ एक आप हिस्ट्री के साथ नहीं, हम उसके साथ कर रहे काम, हम इसकी ज्योग्राफी, हम इसकी सिविक सेंस, हाउ टू लिव, हाउ टू हैंडल, हाउ टू मेक लाइफ बेटर,
एग्जैक्टली। इसमें हमारी लाइफ की जो है उसमें हर चीज आ जाती है। अब ट्रीज हमारे आ जाते हैं हमारे इसमें क्या कहना चाहते हैं, हम क्लाइमेट्स को देखते हैं। हर उस चीज को जो है, सोशल स्टडी इज अ वास्ट है। इसको इसको हम छोटा नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैथ्स है ना, तो हम उसमें मैथ में भी आप देखिए कि सिर्फ सॉरी मैं मैथ्स की हूँ तो मैं मैथ्स पे आ जाती हूँ। कोई बात नहीं। ज्योमेट्री है, हम्म। अलजेब्रा है, कैलकुलस है, हम्म। ट्रिग्नोमेट्री है, हम्म। काफी चीजें हैं, थ्योरम्स हैं। तो हम्म। इसी तरह सोशल स्टडी भी उसमें सब कुछ है। हम्म। हम जैसे आजकल जो हमारा है कि क्लाइमेट का जो आजकल, मैं तो सोचा था बच्चों को बताऊंगी कि ये आज क्लाउड बर्स्ट हुआ है, हमने पढ़ा है, हम्म। फ्लडिंग हमने पढ़ी है, हम्म। और फ्लडिंग वो मड फ्लो भी आया है हमारे हम्म। पाकिस्तान में, आपने देखा होगा रिसेंटली। तो बिल्कुल। ये सारी चीजें बच्चे अगर आप टीवी देखने वाले, बच्चों का क्या है कि मैं ये समझती हूँ कि बच्चे हमारे सीख सकते हैं अगर वो न्यूज पे चले जाएं, उनको न्यूज़पेपर रीडिंग उनको आ जाए, उनको ये सारा, बच्चे ये पेरेंट्स और टीचर्स ही हेल्प आउट कर सकते हैं बच्चों को कि आप इन चीजों को पढ़ो खुद, तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। आसान हो जाएगा बच्चों के लिए। बिल्कुल अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। जो चीज़ें आपने दो दो तीन वेलकम। बहुत स्पेसिफिक एंड बहुत प्रिसाइज शेयर की। एक तो सिविक सेंस के बारे में कि वी एज सिविलाइज्ड पीपल हमारी सिविक सेंस को एनहांस करने के लिए वी टीच दिस सब्जेक्ट। दूसरी चीज़ ये होगी जो आपने अभी बात की, रुबीना, यही चीज़ मैं देख रही थी। बट वी aren't we failed being the teachers or being the educators कि हम अपने लोगों को बता नहीं सके कि फ्लड में आपको ऐसे एरियाज में नहीं जाना अगर आप मैदानी इलाकों से में रहते हैं। वी डू नॉट अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी एंड the weather, the climate, the intensity of natural disasters because we haven't experienced it while living in those flat areas in like Lahore, Islamabad, बाकी जगह पे ये चीजें हमने नहीं देखी हुई थी। बच्चों को ये नॉलेज होने के बावजूद, लेट मी शेयर यू एन एग्जांपल ऑफ सुनामी। जब सुनामी आया था चाइना में, तो अ चाइल्ड वाज स्टैंडिंग नियर बीच और उसने देखा कि सरफेस के ऊपर, समंदर के सरफेस के ऊपर बबल्स बन रहे हैं। And he said that my social studies teacher said that when there's an earthquake underwater, उसका एक सिम्टम ये है, वो नजर तो आपको बहुत बाद में आता है, बट देयर इज अ सिम्टम कि पानी के सरफेस के ऊपर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग और उसने अपने पेरेंट्स से कहा नहीं, वी हैव टू लीव बिकॉज इट्स अ साइन। some of the people along with the family they heard him कि हाँ ये बात ठीक है, and their lives were saved. So I think the purpose was served there by educating a child that yes, they can face a very disastrous kind of natural disaster, but unfortunately we have seen a lot of disaster polish their civic sense. That's what social studies does in us, that we have to be that kind of civic members and civic persons that who will encourage us to be good citizens as well. Sahi? Uh, when we look into the reasons that why we study this, we need to create and design developed and informed responsible citizens. जैसे अभी यहाँ पे डिस्कशन भी हुई जिसमें ये कहा गया कि yes, we need to be responsible and informed citizens of our country. उसके अलावा we need to build our critical thinking. अभी हम बात कर रहे हैं सब, जैसे अभी रुबीना ने कहा फ्लड्स की, हमें इन बारिशों के दरमियान कितने सारे प्रॉब्लम्स देखने पड़े, इंक्लूडिंग पानी से लेके उसके अलावा लाइफ के जितने भी आपके इश्यूज हमें फेस करने पड़े। तो सोशल स्टडीज enables us that we should स्टार्ट दिस जर्नी फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग देखनी है कि आपके सिविक एरिया के अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स मौजूद हैं और किस तरीके से आप उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है। उसके लिए आपको क्रिटिकली सोचना है क्या आपके रिसोर्सेज हैं, क्या आपके
टाइम लिमिट्स हैं, क्या आपके पास क्या पॉलिसी है उस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट की, या जिस भी लेवल के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। एक और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो कल्चरल अवेयरनेस है। आप पाकिस्तान के अंदर बात कर रहे हैं, द कल्चर्स वी हैव, द diversity of cultures we have, we need to understand that all these cultures should be respected, they should be taught, they should be appreciated um, for practices as well. हमारे यहाँ sometimes we see that a huge debate about this kind of province, और ये culture है या वो culture है. We need to understand that differences are present into our society, diversity exists, and इस diversity को हमें कितना अच्छे तरीके से हमें अपने culture के बारे में, languages के बारे में, norms के बारे में, हमें अपने बच्चों को उन community के traditions के बारे में सिखाना है, that they should respect their history, they should respect their traditions to live in a harmonious kind of society. ठीक है, उसके लिए हम क्या चीजें कर सकते हैं, उसको उन चीजों के ऊपर बात करने के लिए हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, कुछ की प्रिंसिपल्स हम ये देखेंगे कि कैसे हम इस फाउंडेशन को बिल्ड कर सकते हैं, हाउ वी कैन अप्लाई दीज मेथड्स, ठीक है। हाउ वी कैन इंटीग्रेट द डिजिटल टूल्स, किस तरीके से आपको डिजिटल मैप्स को इंट्रोड्यूस कराऊंगी, कुछ चीजें ऐसी स्पेशली मैंने आपके लिए, स्पेशली दोज थिंग्स हु आर फ्री टू यूज. Those digital lessons will be shared with you guys, and real world lesson ideas. This is very important. आपको ये टर्म सुन के क्या लगता है कि जब हम डिजाइन रियल वर्ल्ड लेसन आइडियाज की बात करते हैं, व्हाट इट कुड बी, क्या होगा ये, क्या आपके जहन में आती है बात इसको सुन के? क्योंकि हम तो सोशल स्टडीज की बात करते हैं तो वो तो वही है बात, एक ही किताब चल रही है पिछले 10 साल से, और वी आर अनएबल टू चेंज इट. सो ये क्या बात है, ये क्या फिनोमेना हो सकता है कि डिजाइन रियल वर्ल्ड लेसन आइडियाज? व्हाट डू यू थिंक? जी. Can you repeat your question? My question is, when you look at this statement that design real world lesson ideas, so what comes in your mind? What comes in your mind when we think or we talk about the design real world lesson plans या real lesson ideas? रियल वर्ल्ड, हाँ जी, इसमें मैं वही बात करूंगी कि जिस इलाके में हम रह रहे हैं, हम रियल वर्ल्ड बच्चों को बताएंगे जहाँ हमारी दुनिया है वो क्या इस वक्त, उस पे क्या हो रहा है, उनको उस तरह के एग्जाम्पल्स दी जाएंगे, उनको उस तरह से वो बताया जाएगा कि हम जब कोई भी, मैं समझती हूँ कि जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आजकल के हालात के मुताबिक बच्चों को बताया जाए कि आज वो क्या चेंज हो रहा है। बिल्कुल. क्योंकि बुक्स तो आप वो सही बात कर रही हैं कि बनी हुई है, अरसे से वही पढ़ाई जा रहे हैं कि भाई ये है, ये पाकिस्तान हमसाया, ये है वही हमसाया, वो तो लैग कर रहे हैं, यहाँ बच्चों को जो याद नहीं रह रहा या उनका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं आ रहा, उनका कंसंट्रेशन स्पैन, मैं ये समझती हूँ कि वो बहुत थोड़ी देर छोटा सा हो गया है। वो 5 मिनट्स के लिए आपका इंटरेस्ट होगा क्लास में, आफ्टर 5 मिनट्स ऑल द स्टूडेंट्स आर जोन आउट, उनको पता नहीं होता अब हम कहाँ बैठे हैं। इसके लिए एक तो उनको फॉर्मूला फिर टीचर्स को, हाँ हाँ विद यू गाइस, ये जो मैं ये चाहूंगी, बिहेवियरिस्ट हैं, बिहेवियरिस्ट जो हैं वो आप उन्होंने एक फॉर्मूला डिजाइन किया हुआ है कि आप बच्चे का अटेंशन स्पैन मेजर कर सकते हैं. देयर इज अ फॉर्मूला, आई विल शेयर दैट फॉर्मूला विद यू गाइस एज वेल आफ्टर दिस आई सेशन. विल बी वेरी प्लीज, आई विल बी हाँ, वेरी क्योंकि प्लीज। आप अपनी क्लास का अटेंशन स्पैन अकॉर्डिंग टू देयर एज यू कैन कैलकुलेट, उसके हिसाब से भी आप अपने बच्चों का लेसन प्लान बना सकते हैं. दैट्स अ बिहेवियरल अप्रोच बेसिकली. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू शेयर्ड इज दैट कि हम 21st सेंचुरी के अंदर रहते हुए उनके प्रॉब्लम्स को देखते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल हमारी रोड्स कितना जल्दी टूट जाती हैं, है ना. वी हैव सीन रोड्स बनती हैं, प्रोजेक्ट बनता है और वो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, टूट जाती हैं. वी सी पैचेस एंड ऑल दैट. ग्रीक्स जो रोड्स बना रहे थे वो तो अभी तक कई कई रोड्स ऐसी चल रही हैं.
Where I live, there is a railway station which was designed and constructed in late 18s, and it's still there. So what we can do is कि हम 21st सेंचुरी के अंदर रहते हुए उन चीजों को ना सिर्फ हम वहाँ ग्रीक्स ऐसे बनाते थे and that's it. There were where we stop our knowledge, we put a cork on it that Greeks used to work like that. Then that's it. Why we do not opt those techniques of Greeks कि हम ग्रीक्स ने जो बनाया उसका आपको इम्पैक्ट जो है अभी तक नजर आ रहा है, ऐसा ही है ना। और जो हम बना रहे हैं वी कैन सी द इम्पैक्ट इन 2-3 डेज। अभी इस्लामाबाद में F8 के करीब को इतना अच्छा फ्लाईओवर बनाया गया और बारिश हुई एंड विद इन 40 डेज इट कोलैप्स्ड। क्या बारिशें ग्रीक्स के जमानों में नहीं होती थी? चलो इतनी ना भी होती हूँ लेकिन होती तो थी, है ना। सो व्हाट आर द रीजंस? हमारी हिस्ट्री में ऐसी कौन सी चीजें अच्छी थी, ऐसे क्या हमारे पास ऐसे गोल्डन उसके अंदर टिप्स छुपी हुई हैं। वी नीड टू फाइंड आउट देम एंड इनकॉर्पोरेट देम इनटू 21st सेंचुरी कि हम कैसे उस चीज को ऑप्ट करें ताकि हमारा जो प्रेजेंट है वो उतना ही ज्यादा अच्छा हो जाए। नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इट, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करते आपके आइडियाज मुझ तक नहीं पहुंचेंगे। इट इट feels like a one-sided kind of discussion. So I already most of us knows these things, like in sharing your ideas is a very good opportunity and it provides refining of our ideas. Can anybody of you describe कि would there be any philosophical underpinning of social studies? ऐसा भी हो सकता है कि कोई philosophical reason भी हो कि हमें social studies को पढ़ाने की जरूरत है? Have you ever thought about it? कि सोशल स्टडी के पीछे कोई फिलॉसफी भी हो सकती है पढ़ाने की। वो तो बात हमने कर ली कि चलें ठीक है हम सिविक मेंबर्स बना रहे हैं, लेकिन फिलॉसफी इसके पीछे और क्या हो सकती है? I would love to hear any response from you guys. Are you writing your answers into the comment box? अच्छा चलें भी हम इसको डिस्कस कर लें। ये बात हमने कर ली। जितनी भी फिलॉसफी है वो आपको यही कहती है दैट knowledge exists when you construct it, when you look at it, when you explain it and experience it. Like being pragmatic and being constructive. That knowledge आप construct उसी वक्त करते हो जब आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो। एक्सपीरियंशियल थिंग्स वो हैं जो कि आप अपनी सेंसोरियल एक्सपीरियंसेस आपके जितने भी हैं वो आपको एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग की अपॉर्चुनिटी देते हैं, ठीक है। तो फिलॉसफी आपकी यही कहती है कि आप जब उसको रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करते हो तो यू अलाउ देम टू कंस्ट्रक्ट न्यू आइडियाज, ठीक है। एक ग्लोबल अवेयरनेस का फिनोमेनन डिजिटल सिटीजनशिप के बारे में आपने सुना होगा, उसके पीछे भी यही फिलोसॉफी। छोटे छोटे क्लासेस नहीं है, वी नीड टू बी ग्लोबली अवेयर दैट क्या चल रहा है। आपके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं जो कि सोशल एनिमल्स जो कि हम हैं होमोसेपियंस हैं जो हमें किस तरीके से किन किन एरियाज के ऊपर कनेक्ट होने की जरूरत है और किस तरीके से वी कैन प्रिपेयर आवर चिल्ड्रन फॉर दैट, ठीक है। कि हम कहाँ कहाँ कनेक्ट करें आपस में एक दूसरे के साथ, व्हाट कुड बी द एरियाज ऑफ आवर इम्प्रूवमेंट, हम कैसे डिजिटली कनेक्ट करें, हम किस तरीके से इंटेलेक्चुअली कनेक्ट करें, ठीक है। आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग का एक अगर आप सोशल स्टडीज की बात करोगे, जैसे अभी रुबीना ने कहा कि आप सिविक मेंबर्स आप अच्छे बनते हैं। सिविक मेंबर्स बनने के लिए सबसे पहले यू शुड नो और अ चाइल्ड शुड नो व्हाट हिज और हर आइडेंटिटी इज, ठीक है। Have anybody of you try to think what is your identity? Identity other than that you gender based identity की बात नहीं हो रही, ऐसी identity की बात नहीं हो रही जो cultural based है, लेकिन who you are as a person, what is your identity, what sort of person you are. Have you ever tried to think about it?
जो ह्यूमन आइडेंटिटी का फिनोमेना है, जो अभी बात रही है, अगर हम प्राइमरी लेवल की भी बात करें, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम ऑफ आइडेंटिटी डेवलपमेंट इज फ्रॉम 3 to 8 years। जो छोटे बच्चों को डील कर रहे हैं, स्पेशली आप 10 years तक भी आप उसको कह सकते हैं कि अल्टरेशन ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी हो रही होती है। वो बच्चा अपने लिए एक फाउंडेशन सेट कर रहा होता है कि हाउ आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू द वर्ल्ड। तो anybody of you have ever thought about your identity? Because it is very important for us being the teachers। आपकी टीचिंग आइडेंटिटी क्या है, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी क्या है, जब तक आपको ये पता नहीं होगा आप अपने बच्चों में वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट नहीं करवा पाएंगे। तो कोई ऐसा इंसान जिसने आज तक सोचा हो इसके बारे में, अदर देन दैट यस माई आइडेंटिटी इज आई एम पाकिस्तानी, आई एम पंजाबी, और मेरा रिलीजन ये है, मैं रहता यहाँ हूँ, इसके अलावा मेरी जेंडर ये है, इन आइडेंटिटीज के अलावा योर आइडेंटिटी एज अ पर्सन, हैव यू एवर ट्राई टू डिस्कवर इट? सिंपल यस और नो में बता दें, इट्स फाइन। जी। जाहिर है हमारी एक आइडेंटिटी, हम उस वक्त में हम देखा जाए तो माँ भी हैं, बहनें भी हैं, बेटियां भी हम्म। हैं। तो मैं हम्म। ये समझती हूँ कि ये जो सोशल आइडेंटिटी है अपनी, हम्म। वो चीज हमारी हमारे उसमें हर देखें, एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारे अंदर। जब अगर हम जो भी रोल हम किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो तमाम आ जाती हैं। फिर एज अ टीचर हमारी एक आइडेंटिटी है, हम हम्म। एक स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हमारी एक क्लास, तो उसमें मेरा ख्याल है कि हम सब अपने अपने रोल से वाकिफ है, बिल्कुल। अपने अपने आइडेंटिटी से। थैंक यू फॉर शेयरिंग रुबीना। जो थैंक यू। आइडेंटिटी का जो आइडेंटिटी का फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव है ना, ये जो बात आपने की, ये रोल्स हैं। आपके सर्टेन रोल्स हैं और आप इन रोल्स के अंदर एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। व्हेन यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू वर्क एट होम, तो आप अपनी फैमिली के लिए डिफरेंट तरीके से काम कर रहे होते हैं, आप अपने स्कूल के जब एम्प्लॉय होते हैं आप डिफरेंट तरीके से काम कर रहे होते हैं। You as a person, knowing yourself as a person, not as a mother, not as a sister, not as a daughter, you as a human being. That's what brings an identity into us. तो ऐसे ही सोशल स्टडीज के अंदर ये अपॉर्चुनिटी हमें तब मिलती है जब हम बच्चों को वो थोड़ी सी ट्रांजैक्शनल स्पेसेस दे रहे होते हैं कि जी आप बहुत अच्छे हैं, यस दैट इज योर आइडेंटिटी, दैट इज योर कल्चर, दैट इज द नॉर्म्स यू फॉलो, बट आपने ये जो साथ साथ चीजें हैं इनको भी देखना है, इनसे अच्छी चीजें ऑप्ट करनी है। ये एक बड़ा अच्छा फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है। कभी दोबारा बात हुई तो इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे हम। एंड इट फॉस्टर्स अ क्रिटिकल थिंकिंग, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को कनेक्ट करता है। जो कंस्ट्रक्टिव आइडियाज की बात मैं कर रही थी जिस फिलोसफी की, वो यही है दैट यू रिकनेक्ट द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर विच बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन ऑल दीज एरियाज, जिसके ऊपर आप रह के अपनी एक सिविक सोसाइटी की बड़ी अच्छी फाउंडेशन बना सकते हैं। ठीक है। एंड होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सारा रिसोर्सेज भी मैं आपको दे दूंगी। आपसे बात करते हुए ये चीज़ पहले ही हमने डिस्कस की, आपने भी बताया, तलहा ने भी बताया कि ट्रेडिशनल मेथड्स हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। हम कलेक्शन ऑफ डेट्स पे बात करते हैं, नेम्स पे बात करते हैं, फैक्ट्स पे बात करते हैं। ऐसी बहुत सारी रीजंस हैं दैट चिल्ड्रन गेट ट्रिगर्ड ऑफ दिस एंड दे स्टॉप लर्निंग, कि भाई यही चीज़ें हैं क्योंकि याद करना है, हमारा कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है उसके अंदर, है ना। तो इन चीज़ों को, और एक चीज़ हमने ये देखी होगी कि दिस इज मोर टीचर सेंट्रिक। टीचर बताता है मुगल्स ने ये किया है, मंगोल्स ने ये किया है। My daughter hates this sequence of remembering things, but she loves it when she works on Padlet. और जब उसके ऊपर कोई प्रेजेंटेशन बनाती है तो शी लव्स इट। लेकिन जब उसको सिर्फ और सिर्फ मंगोल्स के बारे में पढ़ना पड़ता है तो शी इज नॉट हैप्पी अबाउट इट। लेकिन जब वो मंगोल्स के ऊपर कोई वीडियो देख लेंगे, कोई केस स्टडी देख लेंगे, कोई शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री देख लेंगे, तो वो पढ़ने के बजाय टीचर उनको नहीं बता रही, वो एक स्टोरी टेलिंग मेथड के साथ दे आर लर्निंग दैट यस व्हाट मंगोल्स हैव डन। एंड एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटा। सॉरी टू इंटरप्ट मैम, एक क्वेश्चन की छोटी सी क्लियरिटी चाहिए थी, जी जी, क्वेश्चन आपका पूछ क्या है? सकती हूँ?
जी जी बोलिए। वैसे तो क्वेश्चन एंड आंसर हम बाद में करेंगे, जी लेकिन आप मैम। कर, मैम क्वेश्चन। आप बोलो आप बोलो। जी मैम, मुझे क्लैरिटी चाहिए थी कि जो मतलब पीजी केजी और नर्सरी प्री नर्सरी प्रेप वाले बच्चे होते हैं उनको हम समटाइम जनरल नॉलेज की बुक्स भी पढ़ाते होते हैं ना, जो हमारी माय वर्ल्ड वाली बुक है द राइट स्कूल की। बिल्कुल। तो उसमें जो इंग्लिश में सारा लिखा होता है कि नेशनल पोएट नेशनल एंथम, बच्चे उसको ना अडॉप्ट नहीं कर पाते इंग्लिश में। लेकिन जब हम उनको बताते हैं कि आप हमें कौमी शायर का नाम बताएं तो वो फौरन इंग्लिश में ही उसका जवाब देते हैं, लेकिन इंग्लिश में समझ नहीं पाते। तो इसका क्या मेथड है कि बच्चों को इंग्लिश में समझ आ जाए कि हम क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, तो जो जो एज ग्रुप आपने बताया है ना, पीजी केजी एंड नर्सरी, ठीक है। एक चीज आपको देखनी जी पड़ेगी कि इंग्लिश में ज्यादातर वो बात सिर्फ आपसे करते हैं, ठीक है। फैमिली और जी हमारा जो सेटअप है, जो सोशल सेटअप है हमारा, इसमें हम घर पे वो ज्यादा बात नहीं कर रहे होते, और उस छोटे बच्चे को रिस्पॉन्स करने में और उस चीज को प्रोसेस करने में, जो सवाल है ना आपका, वो बच्चा प्रोसेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि अभी उसके अंदर जी जो जी लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जो उसके प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर, वो भी इतना मास्टर नहीं किया उसने अभी। जी लेकिन जब वो आंसर आप उससे पूछेंगे तो ऑरली वो आपको बता देगा, लेकिन लंबे क्वेश्चंस को उस तरीके से आप ये कह रहे हो कि वो प्रोसेस नहीं कर पाता। तो एक चीज तो इस एज ग्रुप को थोड़ा सा वक्त लगता है। दे जी नॉर्मली वर्क बेस्ड ऑन रेपिटेशंस, क्योंकि इस एज में जो मेमोरी है ना आपकी, और जितना नॉलेज है, वो रेपिटेटिव नॉलेज होता है, वो जी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज नहीं होता। जब भी आप एज की डिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे ना, तो कुछ एज में बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉम्प्रिहेंड करके सीखते हैं, जी जी कुछ एज में ऐसे बच्चे हैं जो रिपीट करके सीखते हैं, ठीक है। जिस एज की आपने बात की है ना, ये कम्प्रिहेंशन की अंडरस्टैंडिंग का लेवल नहीं है, ये रेपिटेटिव नॉलेज का है। वो आपको सुनेंगे, आप ही को आपसे ही सीखे और उसका जवाब दे देंगे, लेकिन जो उनका कॉम्प्रिहेंशन है ना, उसके लिए आपको उनको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेकिंग डाउन ऑफ द क्वेश्चन इन दैट एज इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। केजी तक के बच्चों को ऐसे कर लेना चाहिए, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, पीजी जी एंड नर्सरी के जो बच्चे हैं, उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो कम्प्रिहेंशन पे कॉग्निटिवली काम नहीं, उनका दिमाग ये भी इस हिसाब से बिल्ट नहीं हुआ होता कि वो चंक डाउन करके कॉम्प्रिहेंड कर सकें। लेकिन मैं आपको शेयर कर दूंगी कुछ ऐसी टेक्निक्स भी जो कि स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मॉडर्न अप्रोचेस के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं, वी वर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल मेथड, कि हाउ द ट्रेडिशनल मेथड मेड आवर स्टूडेंट्स सफर्ड बाय ऑल दीज थिंग्स, जिसमें टीचर सेंट्रिक हैं चीजें, जिसमें एंगेजमेंट नहीं थी बच्चों की, एंड इट वाज ऑल अबाउट रोट मेमोराइजेशन। और जिसकी मैं एग्जांपल भी दे रही थी कि नाउ किड्स लर्न मोस्ट ऑफ द थिंग्स बाय स्टोरी टेलिंग मेथड। अगर आप देखें तो जो आपको डिवाइन नॉलेज दिया गया है, डोंट यू थिंक इट्स जस्ट लाइक अ फॉर्म ऑफ स्टोरी? इतने अच्छे तरीके से बिल्ड की गई है, एक चीज आपको बताई है कि दीज आर द डूज एंड डोंट्स, ये आप मत करें, और साथ ही आपको स्टोरी में बताया गया है कि देखा फलां कौम ये कर रही थी और उसके कंसिक्वेंसेस ऐसे हुए, वो ये किया करते थे, ये किया करते थे, और तुम्हारे लिए क्या बेहतर है समझ लेना। वो आपको एज कंक्लूजन देखना होता है। तो आप जितना भी नॉलेज इम्पार्ट करते हो, उसके लिए स्टोरी टेलिंग मेथड इज अ वेरी गुड मेथड। आप बच्चों को, और उससे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, दे कैन रिलेट एज वेल। मॉडर्न अप्रोचेस आपको मैं आगे और जाके बहुत सारी दिखाऊंगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट स्टोरी टेलिंग मेथड्स। मंगोल को एक खास जैसा कि बुक में दिखाया गया वहीं तक दिखा देना, और बच्चों के लिए उसको समझ लेना, या उसको एज इट इज पढ़ लेना या याद कर लेना, इट्स वेरी बोरिंग। व्हेन यू लुक, अभी मैं बात हो रही थी एक बच्चे से, एंड शी सेड के हमने उर्दू में मिलान के बारे में पढ़ना था, इटली में एक जगह है, और मैम ने कहा कि हम पढ़ने से पहले क्या करते हैं कि हम चलें इसके ऊपर एक वीडियो देख लेते हैं। Everybody was very interested. Uski geography, all the norms, the culture, the traditions that was shown into the video. Most of the knowledge was given into another digital platform, by a digital platform which attracts human attention. ठीक है। अभी जो बात रुबीना ने की थी कि अटेंशन स्पैन नहीं है, जो ऑडिटरी अटेंशन स्पैन है ना, वो वैसे भी
इतना ज्यादा नहीं है, आपका विजुअल अटेंशन स्पैन ऑडिटरी अटेंशन स्पैन से ज्यादा है। जब आप खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हो गए, आप अगर मेरे पास ये रिसोर्स ना होता जिसको आप देख रहे हो, स्लाइड्स आ रही हैं जा रही हैं, पिक्चर्स लगी हुई हैं, आगे आपको मैं कुछ और चीजें दिखाऊंगी, तो आपके लिए अगर मैं सिर्फ बोल रही होती तो इट इट वोंट बी वेरी अट्रैक्टिव, आप उसके ऊपर ज्यादा सुन ना रहे होते उसको। सेम goes for your lesson plan. When you tell all your share all your knowledge through a storytelling method, you build stories upon them, and you can at storytelling you have an option कि जी उस टाइम ये हो रहा था, बताएं अगर फॉर एग्जाम्पल हर बच्चे ने सिंड्रेला तो पढ़ी हुई होती है, सिंड्रेला अगर 21st century स्किल्स में होती तो क्या वो वैसी लगती? That's how you connected। अच्छा, मुगल्स ने ये चीजें तो उस टाइम पे जो की थी, अगर इफ दे आर गोइंग टू रिपीट these things into current era 21st century skills में 21st century में हो रहा होता, तो how they are going to behave it? So it provides a critical and reflective approach to the students कि किस तरीके से वो माजी और प्रेजेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, अभी जैसे एक दिस इज नॉट एन अप्रिशिएटेड फिनोमेना, बट आई एम वेरी थैंकफुल टू द गर्ल, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट द नेम, हु आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है ना या इंक्वायरी है, ये आपके अंदर नई चीज को सीखने का, एक्सपीरियंस करने का एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करती है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपने नोट किया हो, मैं कोई भी बात शुरू करने से पहले आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, कोई भी नया आइडिया आपको इंट्रोड्यूस करने से पहले आई एम आस्किंग यू सम क्वेश्चंस, ताकि आप उस चीज के ऊपर सोच सकें, और बजाय ये कि मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, इट्स नॉट जस्ट वन साइडेड काइंड ऑफ डिस्कशन, बट आई want you guys to participate as well. Same as that, when you are dealing with social studies, you need to start with the inquiry. Do not just tell them कि जी चावल जो है ना बहुत खड़े पानी में लगता है। Ask them a question. Have you seen wheat and rice? Is there any difference between these crops? किसी बच्चे ने ऑब्जर्व किया होगा, आपने या तस्वीर लगा दी प्रोजेक्टर के ऊपर, and you just put an inquiry, a question into their mind that why these things are different, and you will see the students will not forget them. अब मैं अभी भी अगर अपना एक्सपीरियंस याद करूं तो आई हैड अ टीचर, केमिस्ट्री टीचर फॉर 3 days ओनली। उसने जो केमिस्ट्री की हमें 3-4 टॉपिक्स पढ़ाए, एटॉमिक मॉडल्स पढ़ाए, वो आज तक हमारे जहन में है, और वो 3 दिन किसी भी और मेरे केमिस्ट्री लेसन के साथ compete नहीं कर सकते। लेकिन see it means कि teacher has a lot of opportunity to put in the best into the student। हमारा उस अब इतना बड़ा हो जाने के बावजूद भी I still have in memory that how she came up with all the new ideas and she interacted with us and we couldn't forget it। तो मैं यही आपसे कहना चाह रही हूँ कि हम पुट दीज आइडियाज इनटू आवर माइंड कि हमें अपने लोग सिविक भी नजर नहीं आ रहे, हमें लोग ग्रीन सिग्नल पे, रेड सिग्नल पे गाड़ी सिग्नल तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वी आर अनएबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन नॉर्दर्न एरियाज लाइफ, हम उनके कल्चर को भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे जब हम जा रहे हैं, हम उनके नेचर को भी समझ नहीं पा रहे, ज्योग्राफी को, पाकिस्तान की ज्योग्राफी को समझ नहीं पा रहे, because we are not putting questions into their minds, we are not telling them somehow if we restrict towards the knowledge which is given into the book, अगर हम वहीं रहेंगे तो I have a practice in my classes, अभी भी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी टॉपिक पढ़ाने के अलावा हमारा एक टू डू लिस्ट चल रहा होता है साथ, जिसमें आई आस्क डिफरेंट रिलेटेड क्वेश्चंस, और या हमारे वो क्वेश्चन जो कि हमारे मुल्क में जो करंट चीज चल रही होती है उसके बारे में, एंड आई मेक इट मार्क्ड फॉर देम। अभी अगर ये भी हमारी एक्टिविटी मार्क्ड होती ना, तो बिलीव यू मी ऑल ऑफ अस वुड बी पार्टिसिपेटिंग, हम सब बात कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिकली जो है वो इस पे काम कर रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बच्चों को इंक्वायरी मेथड की तरफ लेके आऊँ, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स, या हमने जो अगले दिन पढ़ना है या हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई डोंट यू implant a question into the mind
ये एक सवाल है, जरा इसके ऊपर अगर हम बात करें, एंड इट वुड बी वेरी रेलेवेंट फॉर यू गाइस कि आप, अगर आपका बच्चा उस सवाल पे सोच के आता है, नेक्स्ट क्लास में आप उसी का जवाब उसको उस लेसन में मिल जाता है, एंड दैट क्वेरी विल बी सॉल्व्ड. So it is going to be a very wonderful experience for the kids, especially at this age, where they are building new spaces for learning. This is a very good approach, globally participated, a globally appreciated project-based learning की जो approach है, PBL के through आप बच्चों को सिर्फ और सिर्फ knowledge पे काम नहीं करवाते, आप उनको ये कहते हैं कि yes we can learn but we will do it as a project. For example, आप में से आप लोग क्या क्या projects देते हैं? I want to hear any of your experiences and your examples. तो हम उसी के ऊपर उसको relate करते हैं अपने PBL model के साथ. Can you share any of your examples which you do as projects in your classes for the subject of social studies? जी, anybody of you? Because ये तो possible बात है, social studies में projects तो आप करवाते ही होंगे. This is not possible कि आप social studies को project के बगैर लेके चल रहे हो. तो what's your experience? What are your practices for projects? जी, anybody? I hope you guys can hear me. जी, रुबीना आप बताओ, आप 7th ग्रेडर्स को लेके चल रही हो सोशल स्टडीज में, तो आप किस किस्म के प्रोजेक्ट्स करवाते हो? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम. जी ये सारा 47 पीपल बिल्कुल ही म्यूट हो गए। आई वंडर Yes, me too. That's what I was. ये कहीं ऑनलाइन करके ट्रेनिंग सोच चले तो नहीं गए? सबके कैमरे ना ऑन करवाए जाएं। हेलो पार्टिसिपेंट्स, प्लीज वेयर आर यू? जी ये हाथ एक खड़ा हुआ है जी भक्कर कैंपस से। ये आपने जी अनम्यूट जी करना जी है, बोलिए. मेरा ख्याल है। नहीं, they can unmute themselves. ओके ओके ओके। यस मैम, जिस तरह हम सोशल स्टडीज में हम मॉडल्स बनाते हैं, लाइक सोलर सिस्टम के मॉडल्स आ जाते हैं हमारे पास, तो वो हम बच्चों को बताते हैं कि दरमियान में सन है और उसके इर्द गिर्द जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करें, तो ये भी एक लाइक प्रोजेक्ट बन सकता है। ठीक है, ठीक है. You mean that you are taking the project as models. Models अक्सा के कह रही अलावा. है, अक्सा विशाल म्यूट, उनका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा। आर वी सपोज टू डू Actually, दिस? आप प्लीज no, उस no, पर no. क्लिक कीजिए अक्सा, दिस विल बी ऑन इफ यू जस्ट क्लिक। Aksa, हाँ, Aksa will unmute herself and speak. There was someone else who was raising the hand. Yes, please, you can unmute yourself and share your ideas, please. चैट भी आप देखिए, है ना, हम्म, इसमें मेरा ख्याल पीपल आर शेयरिंग देयर थिंग्स। मैं देखती हूँ. Because it's more interactive kind of thing. Now, it's good that you share things in the chat, but actually, when ओके so many people are sitting, I appreciate it that they should speak and talk, and because it connects us. And thank you so much for motivating them to be मैंने, more दे आर वेरी active. गुड टीचर्स ही, एंड यू आर प्रेजेंटिंग इन अ नाइस वे। Thank you. जी, जी Talha, you wanted to share something? थोड़ा सा टेबल सेट करें ना। नहीं, ऐसे नीचे ना रखें, क्योंकि इसमें थोड़ी है।
Somebody was raising the, can you please mute your mic, Talha, if you are not participating? See, somebody raised the hand. Please, Bhakkar campus, आप बताइए, if you have raised the hand, आप please share कीजिए your idea. तो मैम, ये जो आपने प्रोजेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छा, मेरा भी यही तरीका है बच्चों को पढ़ाने का। मैं 6th क्लास को ज्योग्राफिया, 7th और 8th को हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। तो मैं उनको सिर्फ ये नहीं कि मैं उनको बुक से पढ़ा रही हूँ, पास्ट के बारे में बता रही हूँ, मैं उस पास्ट को आगे फ्यूचर से भी रिलेट करती हूँ और प्रेजेंट से भी रिलेट करती हूँ कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है, क्या हमारा जो पास्ट है उसमें ये करंट सिचुएशन ऐड होती है या नहीं होती। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अडॉप्ट नहीं कर पाते, उनको बहुत मतलब समझाने के बाद, उनको जो है प्रोजेक्ट्स के उनको मॉडल्स बना बना के देने के बाद भी कुछ बच्चे जो है ना वो समझ नहीं पाते, अडॉप्ट नहीं कर पाते। तो मेरी क्लास में कुछ बच्चे हैं जो कि ऐसे हैं, हालांकि उस वक्त तो उनको समझ आ रही होती है, उस वक्त मैं उनसे क्वेश्चनिंग करती रहती हूँ साथ साथ में, लेकिन वो तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे। लेकिन जब टेस्ट बेस्ड या फिर टर्म बेस्ड टाइप में उनसे क्वेश्चन करती हूँ कि एक वीक बाद वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट या टर्म में, तो वो उस क्वेश्चन को, उस चीज को जो है ना टोटली जो है ना भूल जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है या कोई इसका सोल्यूशन काइंडली आप मुझे बता दें। अच्छा बेटा, होता ये है, the thing you are saying is we need to understand it that every student cannot learn with the same method. ठीक है, आपने जैसे बात किया, ठीक है, आप डिस्कस भी कर रहे हो और आप उनको ऑफ कोर्स यू आर डिलीवरिंग द लेक्चर्स एज वेल, और आप मॉडल्स भी बना रहे हो। आप मुझे ये बताइए कि डू यू थिंक दोज मॉडल्स आर एज रिलेटेबल, जैसे यहाँ पे बात हो रही है डिफाइन द प्रॉब्लम, जो पीबीएल की बात हो रही थी, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में ये होता है ज्यादातर दैट यू डिफाइन अ प्रॉब्लम। मैं पहले उसको आपको एक्सप्लेन कर दूं एंड देन आई आंसर योर क्वेश्चन। You define a problem कि problem है क्या। For example, if you are trying to relate things with the past, ये 6 steps करके उसके बाद we are going to switch to your example। इतनी देर में आपने एक example सोच के रखनी है कि आपने कौन सा मॉडल बनाया हुआ था और how students are unable to respond according to your expectations in that project। ठीक है, आप डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम को, यू वर्क ऑन द सोल्यूशन क्राइटेरिया, व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशंस to resolve that issue। For example, मैं आपको एक एग्जांपल देने की समझा रही हूँ कि if you work on the diversity acceptance का अगर आपके पास है, ये कल्चर्स है, डिफरेंट कल्चर्स है, छोटे बच्चों को अगर आप कल्चर्स भी कह देते हैं कि वी हैव डिवर्स कल्चर्स इन पाकिस्तान, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, पठान हैं और भी बहुत सारे। हाँ, आप ये चाहते हैं कि हमने ये देखा है कि देयर इज अ फाइट बिटवीन देम। चलिए लेट्स टेक इट ऑन अ लाइटर नोट, हम बिरयानी पे ही लड़ते रहते हैं कि लाहौर एंड कराची में कहाँ ज्यादा अच्छी बन रही है। तो हम अपने सोल्यूशन का क्राइटेरिया निकालेंगे, कुछ हम ये देखेंगे कि व्हाई, हाउ द सोल्यूशन कैन बी सॉर्टेड आउट। हम उस सोल्यूशन के ऊपर रिसर्च, उस क्राइटेरिया के ऊपर रिसर्च करेंगे, क्या इज इट पॉसिबल, क्या 21st सेंचुरी के अंदर रहते हुए क्या इज इट पॉसिबल है। और जैसे अभी भी वी आर हैविंग पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स एज वेल कि पानी किधर का कहाँ है, और ये हमारी ज्योग्राफी को सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि और कैसे हम उन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं। वी शुड डू द रिसर्च ऑन दो सोल्यूशंस कि क्या होगा, एक सोल्यूशन को हम पिक करेंगे जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है, लुकिंग एट आवर रिसोर्सेज, क्या हमारी डोमेन है, उसके अंदर रहते हुए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम उसके अंदर रहते हुए एक सोल्यूशन को पिक करेंगे, we'll try to create and run and inspect that solution, ये बहुत जरूरी है, और उसके बाद reflect on the solution। अब I'll come back to the Bhakkar campus। अब भैया आप मुझे ये बताइए, you said that we build models as well but some students are unable to respond academically as good as you expected them to good, है ना। तो आप मुझे ये बताएं, जो एक मॉडल अगर फॉर एग्जांपल आपने बनाया, तो क्या वो मॉडल हमेशा किसी प्रॉब्लम से स्टार्ट हो रहा होता है या नॉलेज से स्टार्ट हो रहा होता है। मैम वो सम ऐसे होते हैं कि अगर किसी बच्चे को उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने उसको मॉडल बना दिया, उसको समझा दिया,
और अक्सर ऐसा होता है कि उनको नॉलेज देने के लिए कि ये टॉपिक हाँ, जो है ओवरऑल क्लास को समझ आ जाए, उन नॉलेज बच्चों बेस। को भी जिनको प्रॉब्लम हो रही होती है और उन बच्चों को भी जिनको आगे हमें टॉपिक पढ़ाना होता है, समझाना होता है, वो उनको समझ आ जाए। लेकिन फिर भी ऐसा ही होता है कि अच्छा, फिर ऐसा होता है कि जो बच्चे अच्छे होते हैं जिनको जो हम्म, अडॉप्ट कर लेते हैं, सम टाइम वो भी अडॉप्ट नहीं कर पाते, हालांकि हम अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे होते हैं। और मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा ही उनको बस बुक वाला ही पढ़ा रहे हैं। हम हम्म, उनको जो है ना, जो मेरा पढ़ाने का तरीका वो ये है कि मैं बुक में से एक पैराग्राफ लेके और पांच या छह लाइनों का, और उसको ओवरऑल लेक्चर में डिलीवर करती हूँ, उसको समझाती हूँ एग्जाम्पल्स दे के, और सारा और जो है मॉडल्स बना के, और इवन के बोर्ड पे उनको एक एक चीज, हालांकि ज्योग्राफी या हिस्ट्री इतना कोई नहीं है कि बोर्ड पे कोई समझाता हो, फिर भी मैं उनको कुछ ना हम्म, कुछ बोर्ड पे ड्रॉ करके उस हवाले से समझा रही हूँ। हम्म, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जो कि पेपर में उस वक्त वो उनकी जनरल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है, उनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी रही, लेकिन जब वो पेपर में लिखते हैं तो हम्म, वो भूल जाते हैं, या वो कहते हैं कि मैम हम कंफ्यूज हो गए हैं, क्वेश्चन मिक्स हो गए हैं हमारे। हम्म। ठीक है, देखिए ये प्रॉब्लम तो ना रहेगा। डिवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट लर्निंग आपको हमेशा नजर आएगी। आप क्या मुझे कुछ मॉडल्स के अलावा कैन यू शेयर एनी टूल विच यू यूज मल्टीमीडिया से, या कुछ ऐसी वीडियोस या कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको लगता है कि अगर आप बच्चों को दिखा रहे हो तो दे वुड बी मोर हैप्पी टू लर्न थ्रू देम। नहीं, फिलहाल तो मैंने मल्टीमीडिया वगैरह, हाँ ये जरूर कहती हूँ कि आप क्योंकि आप आजकल के दौर में सब बच्चे जो है हम्म, ना, वो सेलफोन यूज करते हैं, टैबलेट्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, पीसीज हम्म, होते हैं सबके पास। तो हम्म, उनको मैं ये जरूर बताती हूँ कि आपके पास ये टॉपिक है, आप कल जाएं, इसके बारे में सर्च करके आए और मुझे बताएं कि आपको कितनी नॉलेज इस बारे में है, क्या हम्म। कंफ्यूजन है, जो फिर आप मुझे आके बताएं ताकि मैं आपको क्लियर करूँ। ठीक है, आप रीइंफोर्समेंट के लिए कर रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर सेशन नाउ, अभी समर वेकेशंस के बाद जब आप जाते हो, जी। देर इज नो वे, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी टॉपिक को जो पढ़ाना चाह रहे हो ना, आप इस मॉडल के ऊपर उसको स्विच कर सकते हो। इट्स नॉट दैट प्रोजेक्ट, ये वर्ड वो नहीं है जिसको हम नॉर्मली लेते हैं कि सोलर सिस्टम का प्रोजेक्ट हो जाएगा, या हम जिनको वो पैनाफ्लेक्स के ऊपर बना लेते हैं, या इस किस्म की कोई भी चीज। दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग जिसमें बच्चा रिसर्च कर रहा होता है, ग्रुप्स में काम कर रहा होता है, और दे ट्राई टू इंटीग्रेट एंड फाइंड आउट द आंसर्स थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, अब आपके लिए सजेशन मेरी ये है कि जब आप जाओगे ना, तो ट्राई टू यूज दिस इज, देखिए 21st सेंचुरी, विदाउट टेक्नोलॉजी इट इज वेरी हार्ड। आपका बच्चा घर में इंटरटेनमेंट के लिए टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, लेकिन अगर आप पढ़ाई के लिए वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, तो देयर इज द gap, a huge gap between a student's इंटरेस्ट ना। अब पढ़ेंगे अगर वो एक नॉर्मल तरीके से, लेकिन एंटरटेन होंगे वो थ्रू टेक्नोलॉजीज, तो वो जाहिर सी बात है कि वो उसको उस तरीके से नहीं ले पाएंगे। आपने सबसे पहले तो ये करना है, ट्राई टू, मैं आपको एंड में यहाँ पे कुछ लिंक्स दूंगी, लिंक्स, इवन उसके अंदर लिंक्स मौजूद हैं। दुनिया में कुछ आर्ट म्यूजियम ऐसे हैं जो बहुत फेमस भी हैं, इटली, यूके, अमेरिका। आज हम बात कर रहे हैं म्यूजियम की, बात कर रहे हैं, हमने बच्चों को बताना है कि जी म्यूजियम में ये चीजें मौजूद हैं। आप उनको बताए बगैर वर्चुअली कनेक्ट करके आप, और दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, दे टेक नथिंग फ्रॉम यू गाइस, और सिंपली आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि जी हमने एक वर्चुअल टूर करवाना है, और आप ना, पाकिस्तान में तो अभी ये इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ग्लोबली आप दुनिया के बहुत अच्छे अच्छे बड़े म्यूजियम्स अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। तो आप बजाय, अब जैसे आप, और आप ये देखेंगे कि बच्चे उन वीडियोस को देखने के बाद जो चीजें उनको याद रह गई हैं, मे बी लेक्चर में उस तरीके से उनसे स्किप हो जाती हैं। तो आपने एक तो अपने टीचिंग स्टाइल में कुछ ऐसी चीजें ऐड करनी हैं जो कि बच्चे दो दोज टेक्निक्स टुवर्ड्स दे आर मोर अट्रैक्टेड। ठीक है, हम ज्यादातर क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुन के भी दे गेट बोर्ड एंड दे कैन नॉट कनेक्ट, एंड जैसे रुबीना भी कह रही थी, दैट इज जोन आउट। ठीक है, तो जो चीजें जो टेक्नोलॉजीज
आगे आप देखेंगे जब मैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज आपको बताती हूँ, आप उनमें से यूज करें। आपने उनको होमवर्क देना है ना, आप उनको कॉपी पे होमवर्क ना दें, आप उनको पैडलेट में होमवर्क दे दें। आप उनको स्टोरी बिल्डिंग के लिए एक और फोरम है, और ये सब जितने फोरम्स मैंने इस प्रेजेंटेशन में मेंशन किए हैं, दे आर ऑल फ्री। So just sign up as teacher. You can give your task there, and they can do their task on that wall होगी जो भी स्टोरी के लिए जो मैं आपको फोरम बताऊंगी। तो उनके लिए ये चीज इंटरेस्टिंग हो जाएगी, उनके लिए मोनोटोनस नहीं रहेगी कि हर चीज कॉपी पे करनी है। चलो सोशल स्टडीज अगर कंप्यूटर पे बैठ के पैडलेट पे करते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग, है ना। तो हम इस तरीके से, दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, कि आप बच्चे को क्रिटिकली उसके अंदर इंगेज कर रहे हो, और आप ये देख रहे हो कि कैसे हम उसको इन्वॉल्व करें। एंड स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम, बिकॉज प्रॉब्लम लीड्स अस टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन, है ना। तो ये आप ही के सवाल का जवाब आ गया कि डिजिटल टूल्स इंटीग्रेशन, एंड आई होप इंशाल्लाह यू वुड बी एबल टू डू इट। और जितने भी सारे लिंक्स वगैरह हैं, आप आपको जब ये प्रेजेंटेशन शेयर होगी तो आप उन लिंक्स को कॉपी कर लें और खुद भी देखें, आप उसके ऊपर काम करें पहले, आप उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे ये कैसे होगा, एंड देन यू आर एबल टू शेयर इट विद योर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह ताला। ठीक है, मोस्ट वेलकम। इसके बाद इंशाल्लाह ताला ये मैं सारी आपको शेयर करके आई विल बी टेकिंग क्वेश्चंस एट द एंड एंड लास्ट 30 मिनट्स। जितनी भी बात हो गई अभी, जैसे इन्होंने भी बताया कि बच्चे समटाइम्स डिस्कनेक्ट विद द नॉलेज जो बुक के थ्रू जा रहा है, या टिपिकली यू री इनफोर्स थ्रू होमवर्क, वर्कशीट्स एंड ऑल। तो द टाइम हैज चेंज्ड। अब आपको जो चीज़ें मैं आपको ये जो टूल्स अभी शेयर करूंगी आपके साथ, दे हैव चेंज्ड द रीइंफोर्समेंट स्टाइल्स एज वेल। ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये स्टिकर सा जिसको यार कह सकते हैं आप, ये जो साइन, दिस वाज एक प्रोजेक्ट था, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट पायलट टेस्टिंग थी यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की, जिसमें उन्होंने ये चीज़ अडॉप्ट की कि कैसे हम स्टोरी टेलिंग के साथ बच्चे को, अगर हम ऐसे डिजिटल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसकी स्टोरी एक से ज्यादा लोगों तक जा सकती है, किस तरीके से वो अपने नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव कर सकता है। तो दे हैव मेड दिस लिटिल एक्सप्रेशन ऑफ दैट, जो मुझे, वो मैं स्टडी जब पढ़ रही थी अरिजोना की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आई जस्ट वांटेड टू ऐड इट इन हियर कि किस तरीके से डिजिटल टूल जो है इंटीग्रेशन, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फीजिबल हो सकती है और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकती है। स्टोरी टेलिंग के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है, स्टोरी जंपर। अगर आप नोट्स ले रहे हैं बैठ के, या आपके पास कोई पेपर पेंसिल है, तो यू शुड राइट इट डाउन। इट इज अ वेरी गुड फोरम, इट टेक्स नो कॉस्ट फ्रॉम एनीवन, नॉट फ्रॉम द एजुकेटर, नॉट फ्रॉम द स्टूडेंट। आप स्टोरी जंपर पे साइन इन कर लॉग इन करें, अपना अकाउंट बनाइए वहां पे, और आप अपने बच्चों को कहें कि जो भी आपका होमवर्क है, गिव इट अ फॉर्म ऑफ स्टोरी। आपको वहां पर पिक्टोरल डिस्क्रिप्शन की भी ऑप्शंस मिल जाएंगी। आपका वो बच्चा जो ज्योग्राफी का या माउंटेन्स आपको कॉपी पे ड्रॉ करके दे रहा है, आप स्टोरी जंपर पे उससे करवा लें, उन्हीं माउंटेन्स के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी बनवा लें। तो व्हाट डू यू थिंक, बच्चा उस तरह नोटबुक के ऊपर काम करके ज्यादा उसके लिए इजी होगा, या स्टोरी जंपर के साथ वो ज्यादा चीजें सीख सकता है? एक ओवरऑल आपका इम्प्रेशन अभी क्या आ रहा है, कि आपको क्या लग रहा है कि अभी हमने बात की, आज हमने if we convert this topic into something, a story kind of thing, and we shift our students to story jumper, जिसमें आप किसी रिवर की स्टोरी बना दें, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, वो किन किन एरियाज को पानी से सैराब करता हुआ जा रहा है, तो व्हाट इज द स्टोरी ऑफ दैट रिवर। आप मुझे बताइए, व्हाट डू यू थिंक, विल दे बी मोर इंटरेस्टेड इन इट और नॉट? क्या लगता है आपको? जी, मेरा ख्याल है कि उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। वो उससे ज्यादा, क्योंकि उनको एक तो मोबाइल मिल जाएगा या लैपटॉप, जो उनको होता है कि हर वक्त हम उसी पे काम करें। तो ये एक अच्छी टेक्निक है कि वो स्टोरी जंपर के थ्रू वो इसको कर सकें। आप अगर देखेंगे, एक्चुअली किड्स आर बोर्ड विद मोनोटनी। अगर आप बच्चों का प्रॉब्लम सुने, स्पेशली फॉर दिस सब्जेक्ट, फॉर सो लॉन्ग माई डॉटर यूज टू हेट दिस सब्जेक्ट, वही चीजें हैं, वही सारी बातें हैं।
बट कुछ ऐसी एक्सपीरियंसेस उसको हुए व्हेन शी स्टार्टेड राइटिंग रिफ्लेक्टिव जर्नल्स ऑन देम, व्हेन शी स्टार्टेड राइटिंग स्टोरीज ऑन देम, उन्होंने चीज़ों को देखना इस एंगल से शुरू किया, तो उसके लिए ये चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो गई। ये हमें थोड़ा सा, दिस इज़ वेरी कॉमन फॉर आवर किड्स, लेट्स टेक इट वेरी पॉजिटिव कि अगर बच्चे हमारे दे आर एबल टू, हम वी आर नॉट दैट गुड एट यूजिंग टेक्नोलॉजी राइट नाउ, आवर किड्स आर यूजिंग इट मोर फीजिबली, एंड 21st सेंचुरी के अंदर रहते हुए वी शुड टेक इट पॉजिटिवली नाउ, क्योंकि अब इसके बगैर यू कैन नॉट मूव इनटू द वर्ल्ड। अभी जो बच्चा आज प्राइमरी सेक्शन में है, या जैसे आप रुबीना आपके बच्चे 7th में हैं या 6th में हैं, जब तक वो अगले 20 सालों में यूनिवर्सिटी लेवल या अपने प्रोफेशनल एक स्टेज पे होंगे, टेक्नोलॉजी मस्ट हैव एनहांस्ड अ लॉट एंड इन वेरी अनआइडेंटिफाइड वे, ऐसा ही है। तो our students has to be prepared from this level, and it is the strength of them. अगर वो टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, वी हैव अ चेक एंड बैलेंस, तो हमें इस चीज को अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज अब कर लेना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के बगैर अगर बच्चा यूज कर रहा है, अच्छे तरीके से करे, ये हमारा एज पेरेंट चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, बट उसका यूज अगर अच्छा है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। So I hope you have noted Story Jumper. You all guys are going to love it, and if you are going to use it, it is going to give you a very productive response. Canva आप में से कुछ लोगों ने यूज किया हुआ होगा। आप जितने भी विजुअल लर्निंग के प्रोजेक्ट्स देना चाह रहे हैं, आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं बाय हैंड, वो जो पैकिंग मटेरियल है उसके साथ बना रहे हैं, कॉस्ट एक तो आपकी बहुत ज्यादा उसमें आ जाती है, फिर 1 साल गुजरने के बाद वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फेंक दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना मटेरियल रखने के लिए वी डू नॉट हैव स्पेसेस एज वेल। This is the best time, I think, that we need to shift all our activities towards technology. आपके लिए space saving है, आपके लिए sustainable है, आप चीज़ों को ज़ाया नहीं करते। ये projects आप अपनी पिछली classes को भी दिखा सकते हैं। तो Canva बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा forum है जिसके ऊपर वो infographics बना सकते हैं, historical events की एक अच्छी presentation उसके ऊपर बना सकते हैं, और they will be able to get hands-on expression for that historical event. ठीक है। आप have you heard of Google Maps? I think अब तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे Google Maps के बारे में ना सुना हो। Google Maps is the most handy thing you have in your phones now. ये ऐप आपको ना सिर्फ आपके इर्द गिर्द की चीजें योर नेविगेशन में है, आपको हेल्प कर रही है, उसके अलावा भी बैक इन 2003 व्हेन आई एक्सपीरियंस्ड इट, जब हमने गूगल मैप्स के साथ पहली दफा सैटेलाइट के थ्रू, जैसे आप चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, जब मैंने अपने ही घर को थ्रू सैटेलाइट देखा, तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर अस कि हाउ वी कैन सी एंड किस तरीके से, और वेयर एवर वी वांट टू, अच्छा अब ये भी दिखाते हैं, अब ये भी देख लेते हैं। उस वक्त पे 2003 में इट वाज नॉट दैट कॉमन, बट इट गेव अस अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरनेट भी आम नहीं था, तो वी डिडंट एक्सप्लोर इट मच। But now Google Earth and Google Maps, they are going to give you a lot of knowledge. आपको लैंडमार्क्स के बारे में, आपको इस किस्म की ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कर देते हैं। गूगल अर्थ इज डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब। वो आपको अगर आप इनकी जो मेन वेबसाइट्स हैं, आप उसका मेंबर बन जाएं, आप उन पे साइन इन करें, जितने भी नोटिफिकेशन आते रहेंगे गूगल अर्थ के बारे में, इनकी डॉक्यूमेंट्रीज जो आती रहेंगी, आप उनको आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। यू कैन हैव द टूर्स ऑफ दोज एरियाज एज वेल। नेशनल ज्योग्राफिक किट, इट्स वेरी हेल्पफुल। बच्चों को अभी बीबीसी अर्थ अगर आप देखें, अब देखें जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, अब हमने अपनी स्टडीज को या अपनी पढ़ाई को, वी डोंट हैव टू रिस्ट्रिक्ट इट टू द बुक्स। नॉलेज का, बुक्स इज अ हेल्पिंग सोर्स। हमें वो बच्चों को इमीडिएटली उनके हाथों में देना ज़रूर होता है, जस्ट बिकॉज दैट दे शुड नो दैट इफ दे वांट टू लुक इनटू एनी स्पेसिफिक टॉपिक, या जो उनका बेसिक रिक्वायरमेंट है वो इस बुक के अंदर मौजूद है। लेकिन नॉलेज इज स्कैटर्ड अराउंड अस एवरीवेयर दीज डेज। आप मीडिया पे जहाँ भी देखें, यू कैन get a lot of knowledge
a lot of information about whatever topic or whatever aspect of your life you want to learn. So National Geographic Kids पे, BBC Earth पे, ये दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं for the geography, how animals are living, what is their ecosystem, how they are responding to these climate change issues. इनके ऊपर बहुत अच्छी इनकी documentaries हैं. आप बच्चों को जब भी कोई नया टॉपिक पढ़ाएं, आप उनको जरूर इस तरह की कोई रेलेवेंट काम भी दें और उनको कोई आप डॉक्यूमेंट्री भी दिखाएं. एंड डू नॉट, द मोस्ट important I think advice or request I can do is that do not restrict your reinforcement, या जिसको आप homework activities कहते हैं, to the copies or the worksheet. ये सबसे ज्यादा बच्चों के लिए बोरिंग हो जाता है. अगर आप अपने होमवर्क को या रीइंफोर्समेंट को डिजिटल टूल्स पे स्विच करें 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए, बिलीव यू मी दैट आपका सब्जेक्ट बच्चों का सबसे ज्यादा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा. और ये सिर्फ और सिर्फ सोशल स्टडीज के लिए, ये सब जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इट कैन बी यूज फॉर एनी सब्जेक्ट. ठीक है, आपको पैडलेट वॉल की भी एग्जांपल मैं दे चुकी हूँ. आपने क्विज लेना है बच्चों का. अभी जैसे वो भक्कर कैंपस से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम बच्चों को बहुत ज्यादा रिवाइज भी करवाते हैं, रिपीट भी करवाते हैं. आप उनके लिए आप उनसे जो डेली क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे हैं, व्हाई डोंट यू स्विच इट टू ऑनलाइन क्विजेस. आप उनको ऑनलाइन क्विज दे दें कि घर जाके यू जस्ट हैव टू जनरेट अ लिंक. आप लिंक पे जाके अपना रिस्पॉन्स आप अपना क्लिक करेंगे. गूगल फॉर्म्स के थ्रू हो सकता है. ऑनलाइन क्विजेस के बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे ऐसे फोरम्स हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन क्विज देते हैं और उसका रिस्पॉन्स आपको वहीं पर आ जाता है. सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी हाई टाइम, यू हैव सम टाइम बच्चों के आने तक दैट यू कैन सर्च फॉर दोज थिंग्स. कुछ चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं और आगे भी बताऊंगी, और कुछ चीज़ें आप अपने बच्चों के लिए खुद से ढूंढें. चैट जीपीटी का जो यूज है, you should teach your kids to use ChatGPT productively, not for copy pasting. ये एक ट्रेंड भी बहुत ज्यादा जो आपको देखने को मिलेगा. ये इससे हम इन पे बात करते हैं कि किस तरीके से एआई को या बाकी चीजों को आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन इन एन एथिकल वे. ठीक है, आप कैसे कौन कौन से टूल्स को यूज कर सकते हैं. जहाँ जब बात हो रही थी रिफ्लेक्शन की, अभी जैसे एक क्वेरी है, और ये सब क्या, आई होप आई अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम होगा कि बच्चे भूल जाते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ स्पैन. आप वीडियो रिफ्लेक्शंस बना लीजिए. आई गेव दिस टास्क इन वन इंटरवेंशन इन अ यूनिवर्सिटी. आई डोंट वांट टू नो द योर perspectives about it on a written way. आप जाइए, just do the interviews and make small videos. चाहे आप फेसेस ना दिखाइए, आप उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखिए, बट एक काम कीजिए कि मुझे आंसर्स अपने जरा वीडियो फॉर्म में बताइए. They were shocked कि we have never given our reflective answers in form of videos. और वो वीडियो में तो हम दे रहे हैं, और उसके अलावा we are gathering different perspectives around the university. Or by the end of the semester, they said this was one of the best experiences we had. Even we made new friends. So whatever you want to engage your students with, just take them out. थोड़ा टाइम टेकिंग है. I understand your concern. मुझे पता है कि क्वेश्चन एंड आंसर्स के एंड पे ये बात आएगी कि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, सोशल स्टडी का जो सिलेबस ज़्यादा है, नंबर ऑफ पीरियड्स कम है. लेकिन आप देखें कि उसका इम्पैक्ट भी तो वैसा नहीं आ रहा ना. फिर अगर हम वही बेसिक चीज़ें, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड लुक फॉर इम्पैक्ट नाउ, कि बच्चे को वो याद रह जाए चीज़. ठीक है, डिजिटल पोर्टफोलियोज बनाएं. सीसॉ एक प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक स्टोरी जंपर. सीसॉ इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. आप वहां पर अपने बच्चों के डिजिटल, जैसे आप बता रहे हो आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो, आप उन प्रोजेक्ट्स के बनाने के बजाय आप डिजिटली पोर्टफोलियोज के ऊपर शिफ्ट कर जाओ. ठीक है, तो वो भी बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा. आपने क्या लर्न किया, आप कह रहे हो कि आप उनको रिवाइज करवा रहे हो, ये सारी चीजें करवा रहे हो, एक्टिविटीज करवा रहे हो, वर्कशीट्स करवा रहे हो, एंड स्टिल समटाइम्स इट डजंट respond well. So try these integrating these technology into your classrooms. आप पोर्टफोलियो के ऊपर, जैसे बच्चा अपनी लर्निंग जब एक्सप्रेस कर रहा होगा, तो he would be able to understand his weak or his or her weak areas as well. ठीक है, तो उसके लिए a window of opportunity for
मोर लर्निंग या अपनी चीज़ों का जो अपनी वीकनेसेस को कवर करने की एक अपॉर्चुनिटी है वो भी वहां पर हो जाएगी। encouraging reflection and sharing, नोटबुक पे लिखा हुआ रिफ्लेक्शन, नोटबुक पे लिखा हुआ जो भी एक बच्चे का एफर्ट होता है, इट स्टेज विद दैट चाइल्ड, नो वन रीड्स एनीबडी एल्स perspective. So when you represent all your perspectives, your learning, your knowledge, your work, you share it. When you share it digitally, it will sorry, it provides an opportunity for other students to learn as well. अभी ये जो चीजें मुझे पता है, जैसे सी सॉ है, मैं आपको पेपर पे शायद लिख के दे देती तो आपको इतना आइडिया ना होता अभी, क्योंकि हमारे पास सेशन का टाइम ही 2 घंटे था। अदरवाइज मैं लेकिन आपको लिंक्स भेज दूंगी, सीसॉ का, स्टोरी जंपर का, कैनवा का तो आप सबके पास है। वो भी मैं ऐड करके इसके अंदर भेज दूंगी, बाकी लिंक्स के साथ जो कि मैंने, वो आप खुद भी देख सकते हैं। ये सारी बात हमने कर ली है। इंटरैक्टिव म्यूजियम्स के ऊपर जो एक्सपीरियंसेस हैं, इसके लिए मैंने आपके लिए रिसोर्स तैयार करके रखा हुआ है। इंटरैक्टिव ज्योग्राफी लर्निंग, यही बात हो रही आपसे शेयर करने के लिए। एक केस स्टडी जो मैंने पढ़ा भी, एंड आई पर्सनली एक्सपीरियंस दिस केस स्टडी। जो भी बात तलहा ने भी की, रुबीना ने भी की, और जो बात अभी भकर कैंपस ने भी की, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट द नेम, कि बच्चे प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं, यू शुड नो। अभी जो सारा हमारी डिस्कशन का मकसद ये था कि बच्चे, वेयर द किड्स आर स्टैंडिंग, दीज आर द what you can say, this is a response or a feedback of a grade 5 student। जब मेरी उनसे बात हुई, जब बात हुई फैसल साहब से मेरी सोशल स्टडीज के बारे में, तो आई हैव टॉक्ड टू हिम कि क्योंकि इट्स ऑलवेज बेटर नॉट टू जस्ट खुद से आप इमेजिन कर लें कि जी ये चीज ऐसे ही होती होगी। एक तो मैंने घर पे एक चीज एक्सपीरियंस कर ली, स्पेशली फॉर ग्रेड 5, आई कॉन्टेक्टेड हिम एंड आई आस्क्ड हिम कि व्हाट प्रॉब्लम्स डिड यू फेस। तो वही जो की इश्यूज उसने बताए, जो आप लोगों ने डिस्कस किए, कि वही रोट मेमोराइजेशन। इसका मतलब है कि सिर्फ टीचर्स ही ये प्रॉब्लम फेस नहीं कर रही, दिस इज अ प्रॉब्लम एट द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल। वो भी ये कह रहा है कि मुझे तो बस रट्टा लगाना पड़ रहा है, आई डोंट नो हाउ टू कवर इट, इट्स अ रोड मेमोराइजेशन थिंग, कि ये हुआ, इस साल में हुआ, इस तरह हुआ, एंड दैट्स इट। एंड समटाइम्स इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स विदाउट माई इनपुट। तो जो बात आपने कहा कि हमने ऐसे पढ़ा, अभी अभी मैं आपको लेटेस्ट जो चीज बता रही हूँ, आपके सामने एक तो टीचर पर्सपेक्टिव है, अब जो मैं आपको केस स्टडी दिखा रही हूँ ये एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव है कि वो बच्चा क्या सोच रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं विजिबल रेलेवेंस नहीं है मेरे पास। वो कहता है मैं चीजों को सिर्फ सुन रहा हूँ, लेकिन मैं उसको रिलेट नहीं कर पा रहा आज के साथ। जब व्हील बना था, बच्चा उसको सुन सकता है कि फलानी सदी में सबसे पहला टूल जो था वो पहिया इजाद हुआ था, लेकिन वो उसको रिलेट नहीं कर पा रहा कि उस पहिए की इजाद ने इतने सालों तक कहाँ कहाँ उसको हेल्प की, या उस टाइम दौर कैसा होगा, वो पत्थर के साथ जब उसको बनाया गया। तो हमने सिर्फ उसको ये बता दिया है कि इंसानी सबसे पहली जो टूल हमने बनाया वो व्हील ही था, लेकिन वो उस टाइम वो अपने इर्द गिर्द इतने टाइप ऑफ व्हील्स देख रहा है, ही कुड नॉट रिलेट के हाउ इट्स पॉसिबल कि इट्स सिंपल इन्वेंशन। तो आपको उसको उसके जमाने में जाके चीज को बताना है, और उसको बताना है कि उस इन्वेंशन ने की एडवांसमेंट ने आज आपको कहाँ तक पहुंचाया, एंड हाउ दे हैव सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम्स। ठीक है। एक डिक्रीज एंगेजमेंट का जो प्रॉब्लम है आपके, social studies can be only improved, and the engagement of the students can only be improved when you interact digitally with your students. If they are bound to respond and share their knowledge on the paper, on the worksheet, they are not going to be active learners at all. ठीक है। वो बिल्कुल ऐसा ही होगा कि उनकी एंगेजमेंट का लेवल जो है वो बहुत कम हो जाएगा, और वो एक पैसिव लर्नर बन जाएंगे, एक्टिवली उस चीज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वो बच्चे ने भी मुझे यही कहा कि जब मेरे एंगेजमेंट लेवल बहुत कम है, टीचर कम्स टू द क्लास, ही टेल्स मी द स्टोरी कि ऐसा ऐसा हुआ था एंड आई हैव टू मेमोराइज इट। ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक केस स्टडी एक्सपीरियंस था जो मैंने आपको बताया, और उसको सॉल्व करने के लिए अब दो चीजें मैंने आपको आगे मैं आपको
शेयर कर रही हूँ वो यही कि आप एक तो पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज आप अपनी इम्प्रूव करें। जैसे आपको मैंने पीबीएल एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहा, जितना भी आप लेसन प्लान करते हैं जो आपको बुक से भी पढ़ाना है, तो जस्ट शिफ्ट इट टुवर्ड्स स्टोरी टेलिंग, शिफ्ट इट टुवर्ड्स इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, मेक इट a more informative kind of project, not that kind of project जिसमें सिर्फ बच्चा कुछ रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा है या उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा है कि उसने घर से मॉडल बना के लेके जाना है, और वो मॉडल भी जो कि वो खुद नहीं बनाता और ज्यादातर उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। तो आपको अपनी पेडागोजी को इस तरीके से ट्विस्ट करना है, जिसकी हमने अभी पीछे सारी बात की कि किस तरीके से हम डिटेल में हम ये बात कर चुके हैं। दूसरा एक बहुत अच्छा वे है डिजिटल टूल्स को incorporate करने का। Being in 21st century, I think education is more interesting, education is more productive in this century. We have a lot of knowledge to share with our kids, और बहुत सारी opportunities भी हैं। आपका स्कूल सिस्टम तो वैसे दे आर लुकिंग फॉर मोर जो अपॉर्चुनिटीज, जो एरिया, जो बच्चों को जो हराइजन देना चाह रहा है। आई हर्ड अबाउट नासा। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि जब आपका स्कूल सिस्टम अपने बच्चों के लिए एक हाई स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, तो आपको भी अपने बच्चों को अपनी पेडागोजीज के थ्रू इतना रिलेट करें, इतना इंटीग्रेट करें कि उनको दुनिया का कोई भी अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है तो वो मिस आउट फील ना करें या लेफ्ट आउट फील ना करें, या किसी एक अच्छी जगह पे जाने के बावजूद ये फील करें कि अच्छा हमने तो ये चीज पहले कभी देखी नहीं थी। So you need to give those experiences to your students first and then they can explore it into the outer world as well. ठीक है, ये कुछ चीजें मैंने सॉरी हाईलाइट करके रखी हुई हैं आपके लिए। आप कैसे, इट्स जस्ट अ समेशन काइंड ऑफ थिंग फॉर यू, तो ट्रांसफॉर्म आप कैसे कर सकते हैं, आप शिफ्ट करें अपने ट्रेडिशनल मेथड को। क्योंकि दिस इज द नीड ऑफ टाइम, दिस इज हाँ, ये हमारी तरह के बच्चे नहीं हैं जो कि हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उस्ताद और किताब हुआ करता था, जितना उस्ताद हमें बता दिया करता था एंड द नॉलेज वी हैव इन आवर बुक्स, हम उस तरह के स्टूडेंट्स रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स आर हैविंग अ लॉट ऑफ काउंटलेस प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम वेयर दे कैन लर्न, दे हैव देयर डिवाइसेस, दे हैव देयर फोरम्स, और बच्चे बहुत इंक्विजिटिव भी होते हैं, दे लर्न, दे डू नॉट स्टेप बैक फ्रॉम लर्निंग। हम बड़े जो हैं वो किसी लिंक को क्लिक करते हुए भी we are very hesitant, but kids are not like that. Especially जो बच्चे अभी मिडिल स्कूल में हैं, they have gone through the era of COVID. COVID की वजह से they are very handy with the technology. So own their strength of being good at technology, and we should embrace their skills as well. आप यही सारी बातें जो कि हम कर रहे थे कि कैसे आप अपने क्लासरूम एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन की जब हमने बात की तो अलाउ योर किड्स टू आस्क क्वेश्चन, ये बहुत ज़रूरी बात है। आप अपने बच्चों को रिस्ट्रिक्ट ना करें, डू नॉट लेट देम बी द लर्नर्स ओनली, जस्ट encourage them that they can be active participants। ठीक हो गया? दीज आर द लिंक्स जिनके ऊपर हम बात कर रहे थे कि ये कुछ लिंक्स हैं कुछ म्यूजियम्स के जिनको आप विजिट कीजिएगा, और आप अपने बच्चों को जो जस्ट प्लान विजिट, आप रिक्वेस्ट कीजिए। ये तमाम ये जो लिंक्स नीचे मौजूद हैं, इजिप्शियन ममीज हैं, ब्रिटिश है, पेरिस का है, उसके अलावा आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी का मिलेगा, इटली का मिलेगा। ये सब इनके लिंक्स इसके अंदर मौजूद हैं। दे हैव स्केजुअल्स, दे हैव आर्टिफैक्ट्स, इस तरह की तमाम चीजें कुछ विजिट करके उनके लिंक्स को यू कैन रिक्वेस्ट एंड यू कैन हैव द टूर्स। बेसिकली व्हाट दे हैव डन, दे हैव कनेक्टेड देयर होल म्यूजियम विद द सीसीटीवी कैमरास, और वो आप सीसीटीवी कैमरास के थ्रू आप उनका टूर कर सकते हो। कुछ टूर्स तो अब उनके पास रिकॉर्डेड मौजूद हैं, लेकिन आप उनसे रिक्वेस्ट करके लाइव टूर्स भी ले सकते हो। So it is going to be a very interesting opportunity for kids कि वो यहाँ बैठ के ग्लोबली जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उनके ऊपर बात कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं एटलीस्ट, एंड they can experience it. So just now come to the question answer session if we have any, please. I would love to listen your questions ताकि हम इसके ऊपर बात करें।
chats में क्या है. Now I'm going to look into the chat. You can ask your questions in chats as well. थैंक यू हिना, बहुत अच्छा रहा आपके साथ, बड़ा Thank you. मजा आया, हर चीज बहुत इंफॉर्मेटिव थी और बड़ा अच्छा आपके साथ सेशन रहा और जो मेरे कुछ क्वेश्चन थे वो काफी हद तक क्लियर हो गए और होप कि मेरा आइंदा के लिए इस पढ़ाई सफर पढ़ाने में अच्छा गुजरेगा और बच्चों को समझ आएगा ये इम्पैक्ट बच्चों पे जो डले वो मैटर करता है, उससे पॉजिटिव होना चाहिए, उनको चीज याद करनी चाहिए उनको. थैंक यू. बिल्कुल ऐसा ही है. एंड आप इसको ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह ताला. वेकेशंस में यू हैव सम टाइम, अगर आप कुछ अपने लेसन्स को इस तरीके से प्लान कर लेते हैं डिजिटली, तो यू विल सी इंशाल्लाह ताला कि द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी वेरी इम्प्रूव्ड. और हमारा जो सबसे ज़रूरी काम है वो यही है कि हम अपने बच्चों को भी इनेबल देम टू learn more and in different ways as well. जी, thank you राबिया इकबाल. अफजल के अंदर thank you. You should have more questions as well. बच्चों के बारे में अगर कोई सवाल है, lesson planning के बारे में कोई सवाल है कि how we can make lesson plans, you can ask the question. क्योंकि अभी आप लोग इसी चीज़ के ऊपर काम भी कर रहे होगे. You are planning for your students. और स्पेशली इस तरह भी थोड़ा सा गाइड हमें सबको ही कीजिए, बल्कि कि जो हम अपने बोर्ड डेकोर करते हैं, जो हम डिस्प्ले क्लासरूम में होता है, तो उसको कैसे रिलेटेबल बनाया जा सकता है कि हमारे जो बोर्ड्स हैं, मोस्टली अभी स्कूल के आगाज हो रहा है और नए बोर्ड्स बनेंगे क्लासरूम्स के अंदर, कि उनको कैसे हम रिलेट कर सकते हैं टॉपिक्स के साथ. बिल्कुल सही. अच्छा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. होता ये है कि वी डेकोरेट आवर बोर्ड्स इन द स्टार्ट ऑफ आवर क्लासेस. मैंने भी जब तक टीचिंग की, मैंने ये देखा कि हम स्टार्ट में ही डेकोरेट करके उनको रख लेते हैं और पूरा साल वो डेकोरेशन ऐसी रहती है और उसका कोई मतलब वो चेंज नहीं होती है ना. आई सजेस्ट कि आप अपने बोर्ड्स को कॉर्नर्स में डिवाइड कर दें, उनको एलोकेट कर दें. एक तो सबसे पहले ये जो टूल्स मैंने आपसे शेयर किए हैं, आप इन टूल्स की एक छोटी सी रिप्रेजेंटेशन बनाएं और अपने बोर्ड के ऊपर लगाएं कि ये जो स्टोरी टेलिंग है, फॉर एग्जांपल जो मैंने आपसे शेयर किया फोरम जंपर, स्टोरी जंपर, अब ये सिर्फ सोशल स्टडीज के लिए नहीं, आप उसको उर्दू के लिए, इंग्लिश के लिए, साइंस के लिए, इवन किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना. तो आप ये करें कि एक तो बच्चों को एक कॉर्नर ये रखें और ये बताइए कि ये डिजिटल टूल्स हम इस दफ़ा इस्तेमाल करेंगे इन द सेशन ऑफ 25-26. ठीक है, एक तो बच्चों को उसके लिए फेमिलियर करवाएं. उसके बाद बजाय ये कि हम खुद से सारी चीज़ें बोर्ड्स पे बना के लगा दें, आप बच्चों के जितने प्रोजेक्ट्स भी आए आप वो डिस्प्ले करें वहाँ पे. या फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, हम ज्यादातर चीजें लेसन प्लान के अंदर लिख देते हैं, लेकिन आपने फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है अपने बच्चे को, तो आप किस तरीके से ये फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे, किन किन एड्स को आप यूज करेंगे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज करेंगे, आप उसका एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन कैनवा पे बनाएं और आप अपने बोर्ड पे लगा दें एक हफ्ता पहले. इससे दो चीजें होंगी, एक तो आपका बच्चा मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा और वो इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा लेना शुरू करेगा. जो चीज मैंने देखी है कि बोर्ड्स को पूरे साल के लिए पहले ही प्रिपेयर करके सिर्फ उसके अंदर सिलेक्टिव टॉपिक्स को रख देना और उसके बाद उसको चेंज ना करना, ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी यूजलेस प्रैक्टिस इन क्लासरूम. सो लेट देम बी एम्प्टी फॉर अ वीक, अनलेस जो चीज आपने उनको दिखानी है वो आप दिखाइए, कॉर्नर में उसको डिवाइड कीजिए और बच्चों का काम उसको वहां पर इस तरीके से, या यूज इट फॉर अपकमिंग टॉपिक्स, नॉट फॉर दैट टॉपिक जो आपने अभी लगा दिया लेकिन पढ़ाना हमने सेकंड टर्म के अंदर है. आप उसको, थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप वीकली बेसिस पे उसको प्लान करेंगे तो इट इज मोर जस्ट लाइक अ बुलेटिन. डोंट यूज इट फॉर अ परमानेंट काइंड ऑफ थिंग ऑन द वॉल, यूज इट एज अ बुलेटिन, एजुकेशनल बुलेटिन, जो कि बुलेटिन तो चेंज होते रहते हैं ना. तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी मोर प्रैक्टिकल. मैं अब जब सोचती हूँ कि मैंने जो किया था
I'm not very, because I was taught that way कि आपको ये करना है और आपको 10 दिन में बोर्ड बना लेना है। आप अभी भी बना के वो रिसोर्सेज रख सकते हैं कि मैंने एक वीक में ये करना है, कैनवा पे उसकी कोई चीज़ बना लें, प्रिंट आउट्स वुड बी अवेलेबल इनटू द कैंपसेस, तो आप उस चीज़ को इस तरीके से लेके चल सकते हैं। आई थिंक यूज देम इनटू एजुकेशनल बुलेटिन बोर्ड्स। अक्सा, आप क्या कहना चाह रहे हो? ग्रेड 4 एंड 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेसन प्लानिंग करते हुए मटेरियल की इतनी क्वांटिटी हो तो हम समझ भी जाएं और बहुत लॉन्ग भी ना हो। बेटा मैं तो आपको मटेरियल पे यही कह रही हूँ कि यू जस्ट कम आउट ऑफ दिस मटेरियल थिंग्स इज बी डिजिटल नाउ। जो मैंने फोरम्स आपको बताए हैं ना, ये अब तो वैसे ये पॉसिबल ऐसा भी नहीं है कि बच्चों के पास नहीं होते। कुछ बच्चे आपकी क्लास में ऐसे होंगे जो दोज हु वोंट बी एबल टू एक्सेस ये कंप्यूटर नहीं है। मैंने एक चीज़ जो काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद सीखी कि हमने जो हमारा हम वेयर वी लैक इज, हम कंप्यूटर को सिर्फ एक अलग सब्जेक्ट के तौर के ऊपर पढ़ा रहे होते हैं और सोशल स्टडीज को एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे ऊपर पढ़ा रहे होते हैं, है ना। हम पेंट के ऊपर ड्राइंग करना अपने बच्चे को कंप्यूटर पे सिखा रहे हैं, लेकिन हम उससे कुछ रैंडम कुछ भी बनवा लेंगे क्योंकि कंप्यूटर का टास्क यही है कि पेंट पे काम करवाना है। तो पेंट के उस काम को आप अपने सोशल स्टडी के टास्क के साथ रिलेट करके दोनों चीजों को क्यों नहीं लेके चल सकते? इंटीग्रेशन करें। आप अपना जो मटेरियल इस्तेमाल करना चाहती हो, आप ये देखो कि आईसीटी की टीचर वेयर शी कैन हेल्प यू, ठीक है। उसके अलावा मैं तो यही कहूंगी कि यू डू नॉट गो फॉर पेपर बेस्ड काइंड ऑफ थिंग्स। आप ज्यादातर बच्चों से प्रेजेंटेशंस बनवाएं। अगर 4 एंड 5 के बच्चे भी, अब तो 1 एंड 2 ग्रेड के बच्चे भी प्रेजेंटेशंस देते हैं अपनी, आप पावर पॉइंट इंट्रोड्यूस करवाएं उनको, आप प्रेजेंट इंट्रोड्यूस करवाएं, आप उनको कैनवा इंट्रोड्यूस करवाएं, वो उस पर इंफोग्राफिक बना लें, पोस्टर बना लें, इस तरह की चीज़ें। अब डिजिटली उनको ज़्यादा एक्टिवेट करें, मेरा ख्याल है वो उसमें ज़्यादा इट्स गुड टू यूज़ कलर्स एज वेल। कलर्स के साथ चार्ट पेपर्स के साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक इट्स मोर फीजिबल नाउ, क्योंकि अगर आप मटेरियल्स को देखें तो ज़्यादातर अच्छा यही है कि आप डिजिटली उनको, इसमें वो लर्निंग भी उनकी होगी। ओके, थैंक यू राबिया श्री। I hope these things pays off. And इसके अलावा कोई question हो तो please you can tell me. Most welcome Aksa. जी फैसल साहब, is there any other questions? It's very good to ask questions. मैं तो आप सबसे यही request कर रही हूँ कि आपकी बहुत सारी queries जो है ना solve हो सकती हैं इस time पे। बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच जी। आई थिंक वी हैव explained everything in detail, और अगर इनका कोई क्वेश्चन होता भी है तो डेफिनेटली दे कैन शेयर with us and we can always seek advice from you. तो इंशाल्लाह ताला, एंड आई होप कि ये सिलसिला चलता रहेगा आप ट्रेनिंग्स का। इंशाल्लाह। हाँ, जब भी कोई किसी भी I will be sharing all these the page. यस बिल्कुल जी जी जरूर। जी। रबात कैंपस मैं हमारा आपको रिसेंटली ओपन हुआ है, वहां से भी किसी ने थैंक यू कहा, एंड वी वेलकम देम। रवात कैंपस, नोकिया C20+, पता नहीं ये कौन सा कैंपस है। अपना कैंपस जरूर मेंशन किया करें जन के नाम के सामने, जैसे रवात कैंपस है वो अपने नाम से लॉगिन हुआ है। तो आई होप दिस दिस इज द सेकंड लास्ट ट्रेनिंग ऑफ दिस वीक। कल जो हमारी ट्रेनिंग है वो उस पे है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के ऊपर, मोस्टली जो स्कूल हेड्स और नेटवर्क एसोसिएट्स हैं उनके लिए है। तो आई थिंक वी आर done today. If there is no other questions, yeah, shall we sure. call off? कोई आपकी तरफ से ही ना रहती है चीज कोई करने वाली? जी, नहीं नहीं, बस फतेहजंग यही था कि कैंपस हो आप, गया। फतेहजंग इज वन ऑफ द बेस्ट कैंपसेस जी। हमारे जो बेस्ट कैंपसेस हैं फतेहजंग अच्छा। और कुतबाल कैंपस जो हैं, दे आर रन बाय सीजन्ड एजुकेशनिस्ट्स अपने इलाके के, जो उनके 35 ईयर से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, एक 4 नस्लों के साथसा हैं। तो वो भी गुड कैंपस। बुरेवाला कैंपस इज वंडरफुल कैंपस। हम्म। तैयबा तारिक ने वहां से हमें ज्वाइन किया है, एंड इनके रिजल्ट्स हमेशा जो हैं वो भी अच्छे आते हैं, और वेरी वेरी वेल मैनेज्ड।
That's nice. It's good to connect with हाँ, all of you people. सर्वर कैंपस इज देयर। अलीजा जतून है जी। सर्वर कैंपस से आपको ये बिल्कुल एप्टा हवेलियां में जब आप दाखिल होते हैं तो मोटरवे के ऊपर वेरी ब्यूटीफुल कैंपस, एक पहाड़ को काट के बनाया गया ये खूबसूरत तरीन कैंपस है, पर्पस बिल्ड एंड ड्रीम कैंपस जिसको आप कहते हैं ना, दिस इज लाइक दैट एंड रन बाय वेरी गुड फैमिली, एजुकेशनिस्ट फैमिली जो है वो है, और ब्यूटीफुल कैंपस एज वेल। शान कैंपस दीर से है, अफगानिस्तान से जस्ट 10 किलोमीटर्स, शॉर्ट ऑफ 10 किलोमीटर्स। शान कैंपस इज अ वंडरफुल कैंपस, वेरी एनर्जेटिक टीम ओवर देयर एज वेल। उनका अभी रिजल्ट भी बड़ा अच्छा है। तो देखिए, फ्रॉम द नूक एंड कॉर्नर्स ऑफ पाकिस्तान पीपल आर लिसनिंग एंड दे आर डूइंग। Yes, yes. एंड ये हम आपको किसी दिन ये, अब तो इसने आसान कर दिया ना चीजें। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर अभी आपने फतेह जंग और कुतुबुल आई थिंक, और वो कुतवाल जो कुतवाल एक और कुतवाल हाँ जी हाँ जी, फुटबॉल जी, और एक और कैंपस का नेम है, सर्वर would कैंपस। you would you like to share the picture of their campus sir? यस यस, व्हाई नॉट जी। जी मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो है दोनों कैंपसेस सुन रहे हैं मेरी बात, तो आई थिंक अगर आप वैसे भी, इफ यू जस्ट गो टू देयर फेसबुक पेज, यू टाइप द सर्वर कैंपस या शियान कैंपस, तो सर्वर कैंपस की सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको आ जाएंगी। अभी अगर मैं इसका कहीं से लिंक आपको दे सकूं तो ओके, चलिए सर, फिर अगर है तो आप हमारे जो हेड है उनके साथ शेयर कर जरूर दीजिएगा जरूर, ताकि हाँ, हमें। करना चाहिए। गूगल एंड फेसबुक के अगर हैं तो एक दूसरे के कैंपसेस की एक्टिविटीज को आप लाइक किया करें। अ, जी 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 जी, वो उनको है ये वाल्टन कैंपस लाहौर में जो हमारा है, रन बाय वन ऑफ माय स्टूडेंट्स जिनको मैंने ही बीएड करवाया था 2004-5 में। वो एजुकेटर्स की प्रिंसिपल थी, देन शी मेड हर ओन कैंपस एंड रनिंग अ वेरी गुड कैंपस, बड़ी सीजन्ड एकेडमिशियन है। तो नारंग मंडी से एक हमारा एक रिमोट एरिया है लाहौर के सबअर्ब में, अफजल कैंपस है बदोमली में। तो दे आर वेरी गुड डूइंग वंडरफुल एफर्ट्स। और कोविड ने हमें ये दिया कि कोविड की वजह से अब वो जो टाइम एंड स्पेस की बाउंड्रीज थी वो खत्म हो गई, और इसी तरह हमने अपने बच्चों के लिए ये वाली जो हर्डल्स हैं जो टाइम और स्पेस की थी वो खत्म करनी है, बच्चों को डिजिटली इक्विप करना है, तभी वो आने वाले वक्त में, बल्कि आने वाला नहीं, जो प्रेजेंट है इसमें अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। Alama Iqbal Town campus is a very nicely decorated, beautiful campus. Rubina Khokhar, thank you very much. ये लाहौर में है जी, and very near to head office. Will definitely, I visited it, but I wish them very good admission campaign वो चला रहे हैं अभी। तो इंशाल्लाह ताला we will visit you once the weather gets good. So if you have any questions, I am there. Miss Hina is there. My whole team is there. Just एक बात आज ध्यान में रखिए कि आज के जो टेक अवे होते हैं किसी भी मीटिंग का, कि अभी किसी ने बात की थी कि बच्चे भूल जाते हैं। अब बच्चों ने कभी भी चिड़िया कभी की कहानी नहीं भूली। बच्चों को शेर और चूहे की कहानी भी याद है, हमें भी याद है, बचपन में पढ़ी थी। और अल्लाह ने कुरान में इंसान को कहानियों के जरिए बताने की कोशिश की है। वो फिश का वाकया हो, वो हजरत यूनुस वाला, वो कोई और वाकया हो, वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया हो, तो कहानियों की शक्ल में अल्लाह पाक बताते हैं। तो अ गुड टीचर इज अ गुड स्टोरी टेलर। और स्टोरी की शक्ल में अब जब भी किसी को हम बात बताते हैं तो वो कभी भी नहीं भूलती। अगर स्टोरी झोल है, स्टोरी कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम है, देन स्टूडेंट टेंड टू फॉरगेट दैट थिंग। लेकिन जो ही स्टूडेंट्स को पता, स्टूडेंट इंटरेस्ट लेता है उस चीज में। और हिस्ट्री और सोशल स्टडी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने तो ऐसे टीचर्स भी देखे हैं जो मैथमेटिक्स को भी कहानी की तरह पढ़ाते हैं। तो वो जब कहानी की तरह पढ़ाते हैं तो अ, कभी बच्चों को नहीं भूलते, वो लाइफ लॉन्ग लर्नर होते हैं। और टीचर भी वैसे अपना एफर्टलेसली पढ़ाते हैं
क्योंकि एक टीचर को रोट लर्निंग करवाने के लिए ज्यादा कैलोरीज, ज्यादा खपना, ज्यादा एंग्जाइटी का शिकार होना पड़ता है। और एक टीचर जो कि कहानी खुद भी एंजॉय कर रही है उस प्रोसेस को, और बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, उसका डोपामिन लेवल हाई हो जाता है। शी वुड एंजॉय हर जर्नी। वो पूरा दिन 2 बजे के बाद थकी नहीं होगी, जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे भले ही फटीग हो, बट एटलीस्ट हर माइंड वुड बी फ्रेश, क्योंकि उसने बच्चों को मोटिवेट किया, उनके अंदर वो एनर्जी जनरेट की है। प्लीज आप सब लोग जाके इंटरनेट पे गूगल करें कि एक अच्छी कहानियां हर सब्जेक्ट की मौजूद है। ये कोई आजकल तो एवरीथिंग इज वेल। आपने एक टॉपिक पढ़ाना है फोटोसिंथेसिस और एनी अदर टॉपिक, यू आस्क चैट जीपीटी गिव मी अ स्टोरी टू रिलेट दिस वेरी थिंग, तो वो आपको बता देगी। जैसे हम अभी रेशो प्रोपोर्शन पढ़ाते हैं स्कूल्स में, तो हम कुरान पाक से उसको रिलेट करते हैं कि अल्लाह ने भी सूरह मरियम में रेशो प्रोपोर्शन की बात की है, जब हम उसको कुरानिक इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो इसी तरह बच्चों के इंटरेस्ट के लेवल पे आप कहानियां ढूंढ सकते हैं इंटरनेट से, और बच्चों अपने लेसन उसमें डाल सकते हैं। जो हेड ऑफिस आपको लेसन प्लान भेजता है, तो दैट इज द बेस लाइन। आपने उसको एम्बेलिश करना है, उसको सजाना है, संवारना है अपने अपने कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। जो केपीके में बैठे हैं वो अपने एनवायरनमेंट के हवाले से चीजें रिलेट करें, जो कराची में है, जो कश्मीर में है, जो पंजाब में है, जो शहरों में है, जो देहातों में। यू हैव टू रिलेट अकॉर्डिंग टू योर, सजाना होता है ना, जैसे जैसे एक कल्चर होता है हर सूबे का, शहर का, तो आपने भी उसी तरह से करना है। तो इंशाल्लाह आप देखें कि आप कैसे लोगों की जिंदगियां बदलते हैं, और आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको पूरी जिंदगी याद रखेंगे। जैसे हिना को, हालांकि शी इज सच अ सीनियर प्रोफेसर, तो इनको अपनी केमिस्ट्री के वो 3 लेसन 3 दिन याद है, इतना अच्छा पढ़ाया। तो आप भी उन बच्चों की यादों में हमेशा जिंदा रहने के लिए 3 दिन तो नहीं, बल्कि जितना अरसा भी आप राइट स्कूल के साथ हैं, यू शुड डिलीवर सच लेसन्स। और इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। गुड लेसन को डिलीवर करना इजी है, और एक बुरे पूरे गंदे खाने को पका पका के मेहमानों को सर्व करना बहुत मुश्किल है, और एक अच्छा खाना जो है वो यूं मिनटों में खत्म होता है। तो सेम गोज विद योर टीचिंग स्ट्रेटजीज, और आपने स्टाइल ठीक करना है। वंस यू नो द फिलोसफी ऑफ एनी सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश की है कि यू हैव टू इमर्स अ स्टूडेंट, इमर्जन मॉडल है कि आपने इमर्स करना स्टूडेंट को उसके अंदर, वो ऑटोमेटिकली अंग्रेजी सीख जाएंगे। उसको भिगो देना इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश आप पानी में डालते हैं तो भीग जाती है। इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। साइंस पढ़ानी है तो उसकी फिलोसफी ये है कि हैंड्स ऑन माइंड्स ऑन। हैंड्स ऑन का मतलब कि अगर हाथ उसके चल रहे हैं किसी पे, किसी चीज पे तजर्बात कर रहा है बच्चा, तो माइंड वुड बी ऑन, तो उसका माइंड भी हो जाएगा। अगर उसके हैंड भी पॉकेट में है, या बिल्कुल साइलेंटली बैठे हुए हैं, खामोश उसके हाथ हैं, तो उसका माइंड भी खामोश है। तो दिस इज हाउ एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन फिलोसफी ऑफ टीचिंग। वो आपको पता होना चाहिए, आपके बोर्ड पे लगी होनी चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बना के एक उसकी स्लाइड भिजवा दूंगा, ताकि वो आपकी क्लासेस में लगे हों, 4 साइज में प्रिंट निकला हो, और आप उसके साथ उनको प्ले करें, ताकि आपकी भी हैमरिंग होती रहे कि जी सब्जेक्ट की फिलोसफी का ये टॉपिक है। और पूरी दुनिया में, मेरा ख्याल है जब पहले जी ये प्लीज। जब इंट्रोडक्शन दे ना सब्जेक्ट का, जब अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाएं ना, तो अपने बच्चों को उसी वक्त साथ फिलोसफी बताएं। इस हाँ दफा ये बच्चों के लिए अगर ये इस दफा करते भी हैं तो इट वुड बी वेरी डिफरेंट फॉर देम, कि हाँ जी बिल्कुल ये एक डिफरेंट, एक हमें तो पहले पता ही नहीं था कि हम जो चीज पढ़ रहे थे उसकी बेसिक फिलोसफी क्या है। क्या है, तो इट्स वेरी गुड कि अगर आप उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं और इंट्रोडक्शन के साथ ही आप बता देते हैं बच्चे को। बिल्कुल। हम्म। ये Thank you so much for having me, जी जी and thank you so much everyone for listening. And I will be sharing all this slide into a PDF format, and I will be sharing it with you guys, and then you can forward it to your colleagues as well, क्योंकि उसके अंदर जो links हैं और जो apps के नाम हैं, अगर किसी ने बिल्कुल। note नहीं किए हुए तो it would be very helpful for you जी to जी, go through and them. we have recorded तो this बाकी अगर कोई thing, and we will definitely share the links with everyone. It will be shared on YouTube, Right School का जो YouTube channel है, and then everybody can
लिसन इट और इसको रिलेट कर सकेगा। इसको एडिट करवा के हम डाल देंगे। थैंक यू वेरी मच जी, सो नाइस ऑफ यू, Thank you. and please stay blessed, and we will end our meeting in here. Thank you very much. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz, Allah Hafiz.